کی شروعات ایک ٹیلنٹڈ اور آنےسٹ آٹوموبائل انجینئر ڈیون چودھری اجائے دیوگن سے ہوتی ہے۔ ڈیون ایک بہت ہوشیار اور محنتی انسان ہے جو اپنی ایک نئی اور ایڈوانس کار ڈیزائن کرتا ہے۔ یہ کر صرف ایک وہیکل نہیں بلکہ ایک ریولوشن ہے آٹوموبائل انڈسٹری میں۔ اس کی یہ انوینشن دنیا کے بڑے انڈسٹریلسٹس کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو چوری کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے آگے کی سٹوری آپ کو میری کالیگ احمد حسن قطری بتائیں گا۔ ڈیون ایک سنگل فادر ہے جو اپنے بیٹے راج چودھری سے بہت پیار کرتا ہے۔ راج ایک شریف اور معصوم لڑکا ہے جو اپنی کالج لائف انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے سپنے بڑے ہیں مگر اس کی دنیا صرف اس کے باپ ڈیون کے گرد گھومتی ہے۔ ڈیون چاہتا ہے کہ راج ایک بہترین فیوچر بنائے اور اس کو کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈیون اپنی نئی کار کا ڈیزائن لے کر ایک بڑی آٹوموبائل کمپنی کے مالک راکیش کپور کے پاس جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا ڈیزائن استعمال کیا جائے اور انڈسٹری میں ایک نئے دور کا آغاز ہو، مگر کپور اور اس کے کرپٹ بزنس پارٹنرز اینتھنی ڈی کوسٹا، مہیش سکسینہ، کیلاش چوپڑا اور کھرانا ڈیون کے ویژن کو صرف پیسہ بنانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ ڈیون کی انوینشن کو چرا کر اپنا نام دینا چاہتے ہیں۔ جب ڈیون ان لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا تو یہ لوگ ایک ષڈینتر رچ کر اس کو مار ڈالنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک رات جب ڈیون اپنی کار کے ساتھ ایک برج سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے یہی کرپٹ بزنس مین لگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ڈیون کو ایک چھوٹی سی لڑائی کا بہانہ بنا کر روک لیتے ہیں، پھر اس کو مارنے لگتے ہیں۔ ڈیون ان سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اکیلا ہوتا ہے اور یہ لوگ 4-5۔ آخر کار وہ بیچارہ ڈیون ایک خونی حملے کا شکار۔ ایک رات جب ڈیون اپنی نئی کار لے کر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے دشمن اس کا راستہ روک لیتے ہیں۔ یہ لوگ اس کو دھمکانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنا انوینشن ان کو دے دے، مگر ڈیون انکاری کر دیتا ہے۔ آخر کار وہ بیچارہ ڈیون ایک خونی حملے کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اس کو ایک ندی میں پھینک دیتے ہیں اور اس کی کار بھی اس کے ساتھ گر جاتی ہے۔ ڈیون کی موت ہو جاتی ہے اور اس کا سپنا ادھورا رہ جاتا ہے، مگر اس کی روح اس دنیا سے جا نہیں پاتی۔ اس کا جنون، اس کا غصہ اور اس کا دکھ اس کی روح کو شانت نہیں دیتا۔ ڈیون کی موت کے بعد اس کا بیٹا راج اور اس کی ماں بہت غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ راج بہت اداس رہتا ہے مگر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس کے باپ کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا لیکن اصل میں یہ ایک پلانڈ مرڈر تھا۔ کچھ سال گزر جاتے ہیں، راج بڑا ہو جاتا ہے اور اپنے باپ کی یادوں کے ساتھ جیتا ہے۔ ایک دن اس کو ایک پرانی اور ٹوٹی پھوٹی کار ملتی ہے۔ یہ کار کافی بری حالت میں ہوتی ہے مگر راج اس کو ریپیئر کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنی سکلز کا استعمال کر کے اس گاڑی کو ایک شاندار، ماڈرن اور پاورفل سپورٹس کار بنا دیتا ہے۔ لیکن جو راج نہیں جانتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ صرف ایک عام کار نہیں تھی، یہ اس کے باپ کی روح سے جڑی ہوئی تھی۔ ایک رات جب راج سو رہا ہوتا ہے تو یہ کار خود سے چلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ایک ہانٹڈ کار بن چکی ہوتی ہے جس میں ڈیون کی روح سمجھ چکی ہوتی ہے۔ یہ کار صرف ایک وہیکل نہیں بلکہ ایک انصاف کی مشین بن چکی ہوتی ہے۔ اب اس کا صرف ایک مقصد ہے ان دشمنوں سے بدلہ لینا جنہوں نے ڈیون کو مارا تھا۔ ایک ایک کر کے ڈیون کی روح والی ٹارزان چار ان سب دشمنوں کو مارنے لگتی ہے۔ پہلے اینتھنی ڈی کوسٹا رات اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے جب ٹارزان کار اچانک اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ کار اس کا پیچھا کرتی ہے اور اینتھنی کو ایک ڈرے دلن والے چیس سین میں الجھا دیتی ہے۔ آخر کار ٹارزان اینتھنی کی کار کو ایک پل سے ٹکرا دیتی ہے اور اس کی جگہانیہ موت ہو جاتی ہے۔ پھر مہیش سکسینہ ایک کلب میں انجوائے کر رہا ہوتا ہے جب ٹارزان کار کلب کے باہر آ کر اس کا انتظار کرتی ہے۔ جب مہیش اپنی کار میں بیٹھتا ہے تو ٹارزان اس کو گھسیٹ لے جاتی ہے اور ایک ہائی سپیڈ چیس کے بعد اس کو ایک ٹرک سے ٹکرا دیتی ہے۔ مہیش بھی مر جاتا ہے۔ کیلاش چوپڑا کو ٹارزان ایک فیکٹری میں پکڑتی ہے جہاں اس کو ایک ٹیریفائنگ طریقے سے زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ پھر کھرانا کو ٹارزان ایک ابینڈنڈ ہائی وے پر پھنساتی ہے۔ اس کو ٹارزان ایک کلف سے گرا دیتی ہے جس سے اس کی ہارفائنگ موت ہو جاتی ہے۔ جب یہ قتل ہونے لگتے ہیں تو پولیس اور راج کے دوستوں کو شک ہونے لگتا ہے کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ راج کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ اس کی کار ایسے کیسے چل رہی ہے۔ آخر کار اس کو یہ راز پتہ چلتا ہے کہ اس کی کار میں اس کے باپ ڈیون کی روح ہے۔ ایک دن راکیش کپور راج کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے مگر ٹارزان کار آخر کار کپور کو بھی مار دیتی ہے۔
राज ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है कि उसके बाप ने बदला ले लिया, मगर अब उसको ये भी समझ आता है कि टार्जन कार को आगे चला कर रखा नहीं जा सकता क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है। इसलिए राज टार्जन कार को एक पानी के अंदर गिरा देता है ताकि उसकी रूह में रेस्ट कर सके। फिल्म एक इमोशनल नोट पर खत्म होती है जिसमें राज कहते हैं, पापा अब आप सुकून में हैं, मैं आपको कभी ना ही भूलूंगा। कहानी की शुरुआत एक टैलेंटेड और ऑनेस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर देवेन चौधरी अजय देवगन से होती है। देवेन एक बहुत होशियार और मेहनती इंसान है जो अपनी एक नई और एडवांस कार डिजाइन करता है। ये कर सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। उसकी ये इन्वेंशन दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए बहुत मुफीद हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसको चोरी करना चाहते हैं। इससे आगे की स्टोरी आपको मेरी कॉलीग अहमद हसन कतरी बताएंगे। डेविन एक सिंगल फादर है जो अपने बेटे राज चौधरी से बहुत प्यार करता है। राज एक शरीफ और मासूम लड़का है जो अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। उसके सपने बड़े हैं मगर उसकी दुनिया सिर्फ उसके बाप डेविन के गिर्द घूमती है। डेविन चाहता है कि राज एक बेहतरीन फ्यूचर बनाए और उसको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। डेविन अपनी नई कार का डिजाइन लेकर एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक राकेश कपूर के पास जाता है। वो चाहता है कि उसका डिजाइन इस्तेमाल किया जाए और इंडस्ट्री में एक नए दौर का आगाज हो, मगर कपूर और उसके करप्ट बिजनेस पार्टनर्स एंथनी डिकोस्टा, महेश सक्सेना, कैलाश चोपड़ा और खुराना डेविन के विजन को सिर्फ पैसा बनाने का जरिया समझते हैं। ये लोग डेविन की इन्वेंशन को चुरा कर अपना नाम देना चाहते हैं। जब डेविन इन लोगों के साथ डील नहीं करता तो ये लोग एक षड्यंत्र रच कर उसको मार डालने का फैसला करते हैं। एक रात जब डेविन अपनी कार के साथ एक ब्रिज से गुजर रहा होता है तो उसके पीछे यही करप्ट बिजनेसमैन लग जाते हैं। ये लोग डेविन को एक छोटी सी लड़ाई का बहाना बनाकर रोक लेते हैं, फिर उसको मारने लगते हैं। डेविन उनसे लड़ने की कोशिश करता है मगर वो अकेला होता है और ये लोग 4-5। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार। एक रात जब डेविन अपनी नई कार लेकर जा रहा होता है तो उसके दुश्मन उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये लोग उसको दम करने लगते हैं और कहते हैं कि वो अपना इन्वेंशन उनको दे दे, मगर डेविन इनकारी कर देता है। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार हो जाता है। वो लोग उसको एक नदी में फेंक देते हैं और उसकी कार भी उसके साथ गिर जाती है। डेविन की मौत हो जाती है और उसका सपना अधूरा रह जाता है, मगर उसकी रूह इस दुनिया से जा नहीं पाती। उसका जुनून, उसका गुस्सा और उसका दुख उसकी रूह को शांत नहीं देता। डेविन की मौत के बाद उसका बेटा राज और उसकी माँ बहुत गम में डूब जाते हैं। राज बहुत उदास रहता है मगर उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके बाप के साथ क्या हुआ। वो समझता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन असल में ये एक प्लान्ड मर्डर था। कुछ साल गुजर जाते हैं। राज बड़ा हो जाता है और अपने बाप की यादों के साथ जीता है। एक दिन उसको एक पुरानी और टूटी फूटी कार मिलती है। ये कार काफी बुरी हालत में होती है मगर राज इसको रिपेयर करने का फैसला करता है। वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके इस गाड़ी को एक शानदार, मॉडर्न और पावरफुल स्पोर्ट्स कार बना देता है। लेकिन जो राज नहीं जानता था वो ये था कि ये सिर्फ एक आम कार नहीं थी, ये उसके बाप की रूह से जुड़ी हुई थी। एक रात जब राज सो रहा होता है तो ये कार खुद से चलना शुरू कर देती है। ये एक हॉन्टेड कार बन चुकी होती है जिसमें डेविन की रूह समझ चुकी होती है। ये कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक इंसाफ की मशीन बन चुकी होती है। अब इसका सिर्फ एक मकसद है उन दुश्मनों से बदला लेना जिन्होंने डेविन को मारा था। एक एक करके डेविन की रूह वाली टार्जन कार उन सब दुश्मनों को मारने लगती है। पहले एंथनी डिकोस्टा रात अपने घर जा रहा होता है जब टार्जन कार अचानक उसके सामने आ जाती है। ये कार उसका पीछा करती है और एंथनी को एक डरे डिलन चाइस सीन में उलझा देती है। आखिरकार टार्जन एंथनी की कार को एक पुल से टकरा देती है और उसकी जघन्य मौत हो जाती है। फिर महेश सक्सेना एक क्लब में एंजॉय कर रहा होता है जब टार्जन कार क्लब के बाहर आकर उसका इंतजार करती है। जब महेश अपनी कार में बैठता है तो टार्जन उसको घसीट ले जाती है और एक हाई स्पीड चेस के बाद उसको एक ट्रक से टकरा देती है। महेश भी मर जाता है। कैलाश चोपड़ा को टार्जन एक फैक्ट्री में पकड़ती है जहां उसको एक टेरिफाइंग तरीके से जिंदा जला दिया जाता है। फिर खुराना को टार्जन एक अबैंडन्ड हाईवे पर फांसती है।
उसको टार्जान एक क्लिफ से गिरा देती है, जिससे उसकी हॉरिफाइंग मौत हो जाती है। जब ये कत्ल होने लगते हैं तो पुलिस और राज के दोस्तों को शक होने लगता है कि ये सब कौन कर रहा है। राज को भी समझ नहीं आता कि उसकी कार ऐसे कैसे चल रही है। आखिरकार उसको ये राज पता चलता है कि उसकी कार में उसके बाप डेविन की रूह है। एक दिन राकेश कपूर राज को फंसाने की कोशिश करता है, मगर टार्जन कार आखिरकार कपूर को भी मार देती है। राज ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है कि उसके बाप ने बदला ले लिया, मगर अब उसको ये भी समझ आता है कि टार्जन कार को आगे चला कर रखा नहीं जा सकता, क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है। इसलिए राज टार्जन कार को एक पानी के अंदर गिरा देता है ताकि उसकी रूह में रेस्ट कर सके। फिल्म एक इमोशनल नोट पर खत्म होती है, जिसमें राज कहते हैं, पापा अब आप सुकून में हैं, मैं आपको कभी ना ही भूलूंगा। कहानी की शुरुआत एक टैलेंटेड और ऑनेस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर डेविन चौधरी अजय देवगन से होती है। डेविन एक बहुत होशियार और मेहनती इंसान है जो अपनी एक नई और एडवांस कार डिजाइन करता है। ये कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। उसकी ये इन्वेंशन दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए बहुत मुफीद हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसको चोरी करना चाहते हैं। इससे आगे की स्टोरी आपको मेरी कॉलीग अहमद हसन कतरी बताएंगे। डेविन एक सिंगल फादर है जो अपने बेटे राज चौधरी से बहुत प्यार करता है। राज एक शरीफ और मासूम लड़का है जो अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। उसके सपने बड़े हैं, मगर उसकी दुनिया सिर्फ उसके बाप डेविन के गिर्द घूमती है। डेविन चाहता है कि राज एक बेहतरीन फ्यूचर बनाए और उसको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। डेविन अपनी नई कार का डिजाइन लेकर एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक राकेश कपूर के पास जाता है। वो चाहता है कि उसका डिजाइन इस्तेमाल किया जाए और इंडस्ट्री में एक नए दौर का आगाज हो, मगर कपूर और उसके करप्ट बिजनेस पार्टनर्स एंथनी डिकोस्टा, महेश सक्सेना, कैलाश चोपड़ा और खुराना डेविन के विजन को सिर्फ पैसा बनाने का जरिया समझते हैं। ये लोग डेविन की इन्वेंशन को चुरा कर अपना नाम देना चाहते हैं। जब डेविन इन लोगों के साथ डील नहीं करता तो ये लोग एक षड्यंत्र रच कर उसको मार डालने का फैसला करते हैं। एक रात जब डेविन अपनी कार के साथ एक ब्रिज से गुजर रहा होता है तो उसके पीछे यही करप्ट बिजनेसमैन लग जाते हैं। ये लोग डेविन को एक छोटी सी लड़ाई का बहाना बनाकर रोक लेते हैं, फिर उसको मारने लगते हैं। डेविन उनसे लड़ने की कोशिश करता है, मगर वो अकेला होता है और ये लोग 4-5। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार। एक रात जब डेविन अपनी नई कार लेकर जा रहा होता है तो उसके दुश्मन उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये लोग उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि वो अपना इन्वेंशन उनको दे दे, मगर डेविन इनकार कर देता है। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार हो जाता है। वो लोग उसको एक नदी में फेंक देते हैं और उसकी कार भी उसके साथ गिर जाती है। डेविन की मौत हो जाती है और उसका सपना अधूरा रह जाता है, मगर उसकी रूह इस दुनिया से जा नहीं पाती। उसका जुनून, उसका गुस्सा और उसका दुख उसकी रूह को शांत नहीं देता। डेविन की मौत के बाद उसका बेटा राज और उसकी माँ बहुत गम में डूब जाते हैं। राज बहुत उदास रहता है, मगर उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके बाप के साथ क्या हुआ। वो समझता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन असल में ये एक प्लान्ड मर्डर था। कुछ साल गुजर जाते हैं। राज बड़ा हो जाता है और अपने बाप की यादों के साथ जीता है। एक दिन उसको एक पुरानी और टूटी फूटी कार मिलती है। ये कार काफी बुरी हालत में होती है, मगर राज इसको रिपेयर करने का फैसला करता है। वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके इस गाड़ी को एक शानदार, मॉडर्न और पावरफुल स्पोर्ट्स कार बना देता है। लेकिन जो राज नहीं जानता था वो ये था कि ये सिर्फ एक आम कार नहीं थी, ये उसके बाप की रूह से जुड़ी हुई थी। एक रात जब राज सो रहा होता है तो ये कार खुद से चलना शुरू कर देती है। ये एक हॉन्टेड कार बन चुकी होती है जिसमें डेविन की रूह समझ चुकी होती है। ये कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक इंसाफ की मशीन बन चुकी होती है। अब इसका सिर्फ एक मकसद है, उन दुश्मनों से बदला लेना जिन्होंने डेविन को मारा था। एक एक करके डेविन की रूह वाली टार्जन कार उन सब दुश्मनों को मारने लगती है। पहले एंथनी डिकोस्टा रात अपने घर जा रहा होता है जब टार्जन कार अचानक उसके सामने आ जाती है। ये कार उसका पीछा करती है और एंथनी को एक डरे डिलन वाले चेस सीन में उलझा देती है। आखिरकार टार्जन
एंथनी की कार को एक पुल से टक्कर देती है और उसकी जघन्य मौत हो जाती है। फिर महेश सक्सेना एक क्लब में एंजॉय कर रहा होता है जब टार्जन कार क्लब के बाहर आकर उसका इंतजार करती है। जब महेश अपनी कार में बैठता है तो टार्जन उसको घसीट ले जाती है और एक हाई स्पीड चेस के बाद उसको एक ट्रक से टक्कर देती है। महेश भी मर जाता है। कैलाश चोपड़ा को टार्जन एक फैक्ट्री में पकड़ती है जहां उसको एक टेरिफाइंग तरीके से जिंदा जला दिया जाता है। फिर खुराना को टार्जन एक अबैंडन्ड हाईवे पर फांसती है। उसको टार्जन एक क्लिफ से गिरा देती है जिससे उसकी हॉरिफाइंग मौत हो जाती है। जब ये कत्ल होने लगते हैं तो पुलिस और राज के दोस्तों को शक होने लगता है कि ये सब कौन कर रहा है। राज को भी समझ नहीं आता कि उसकी कार ऐसे कैसे चल रही है। आखिरकार उसको ये राज पता चलता है कि उसकी कार में उसके बाप डेविन की रूह है। एक दिन राकेश कपूर राज को फंसाने की कोशिश करता है मगर टार्जन कार आखिरकार कपूर को भी मार देती है। राज ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है कि उसके बाप ने बदला ले लिया, मगर अब उसको ये भी समझ आता है कि टार्जन कार को आगे चला कर रखा नहीं जा सकता क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है। इसलिए राज टार्जन कार को एक पानी के अंदर गिरा देता है ताकि उसकी रूह में रेस्ट कर सके। फिल्म एक इमोशनल नोट पर खत्म होती है जिसमें राज कहते हैं, पापा अब आप सुकून में हैं, मैं आपको कभी ना ही भूलूंगा। कहानी की शुरुआत एक टैलेंटेड और ऑनेस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर देवेन चौधरी अजय देवगन से होती है। देवेन एक बहुत होशियार और मेहनती इंसान है जो अपनी एक नई और एडवांस कार डिजाइन करता है। ये कर सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। उसकी ये इन्वेंशन दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए बहुत मुफीद हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसको चोरी करना चाहते हैं। इससे आगे की स्टोरी आपको मेरी कॉलीग अहमद हसन कतरी बताएंगे। डेविन एक सिंगल फादर है जो अपने बेटे राज चौधरी से बहुत प्यार करता है। राज एक शरीफ और मासूम लड़का है जो अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। उसके सपने बड़े हैं मगर उसकी दुनिया सिर्फ उसके बाप डेविन के गिर्द घूमती है। डेविन चाहता है कि राज एक बेहतरीन फ्यूचर बनाए और उसको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। डेविन अपनी नई कार का डिजाइन लेकर एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक राकेश कपूर के पास जाता है। वो चाहता है कि उसका डिजाइन इस्तेमाल किया जाए और इंडस्ट्री में एक नए दौर का आगाज हो। मगर कपूर और उसके करप्ट बिजनेस पार्टनर्स एंथनी डिकोस्टा, महेश सक्सेना, कैलाश चोपड़ा और खुराना डेविन के विजन को सिर्फ पैसा बनाने का जरिया समझते हैं। ये लोग डेविन की इन्वेंशन को चुरा कर अपना नाम देना चाहते हैं। जब डेविन इन लोगों के साथ डील नहीं करता तो ये लोग एक षड्यंत्र रच कर उसको मार डालने का फैसला करते हैं। एक रात जब डेविन अपनी कार के साथ एक ब्रिज से गुजर रहा होता है तो उसके पीछे यही करप्ट बिजनेसमैन लग जाते हैं। ये लोग डेविन को एक छोटी सी लड़ाई का बहाना बनाकर रोक लेते हैं, फिर उसको मारने लगते हैं। डेविन उनसे लड़ने की कोशिश करता है मगर वो अकेला होता है और ये लोग 4-5। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार। एक रात जब डेविन अपनी नई कार लेकर जा रहा होता है तो उसके दुश्मन उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये लोग उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि वो अपना इन्वेंशन उनको दे दे, मगर डेविन इनकार कर देता है। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार हो जाता है। वो लोग उसको एक नदी में फेंक देते हैं और उसकी कार भी उसके साथ गिर जाती है। डेविन की मौत हो जाती है और उसका सपना अधूरा रह जाता है, मगर उसकी रूह इस दुनिया से जा नहीं पाती। उसका जुनून, उसका गुस्सा और उसका दुख उसकी रूह को शांत नहीं देता। डेविन की मौत के बाद उसका बेटा राज और उसकी माँ बहुत गम में डूब जाते हैं। राज बहुत उदास रहता है मगर उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके बाप के साथ क्या हुआ। वो समझता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था लेकिन असल में ये एक प्लान्ड मर्डर था। कुछ साल गुजर जाते हैं। राज बड़ा हो जाता है और अपने बाप की यादों के साथ जीता है। एक दिन उसको एक पुरानी और टूटी फूटी कार मिलती है। ये कार काफी बुरी हालत में होती है मगर राज इसको रिपेयर करने का फैसला करता है। वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके इस गाड़ी को एक शानदार, मॉडर्न और पावरफुल स्पोर्ट्स कार बना देता है। लेकिन जो राज नहीं जानता था वो ये था कि ये सिर्फ एक आम कार नहीं थी, ये उसके बाप की रूह से जुड़ी हुई थी। एक रात जब राज सो रहा होता है तो ये कार खुद से चलना शुरू कर देती है।
یہ ایک ہانٹڈ کار بن چکی ہوتی ہے جس میں ڈیون کی روح سمجھ چکی ہوتی ہے. یہ کار صرف ایک وہیکل نہیں بلکہ ایک انصاف کی مشین بن چکی ہوتی ہے. اب اس کا صرف ایک مقصد ہے ان دشمنوں سے بدلہ لینا جنہوں نے ڈیون کو مارا تھا. ایک ایک کر کے ڈیون کی روح والی ٹارزان چار ان سب دشمنوں کو مارنے لگتی ہے. پہلے اینتھنی کوسٹا رات اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے جب ٹارزان کار اچانک اس کے سامنے آ جاتی ہے. یہ کار اس کا پیچھا کرتی ہے اور اینتھنی کو ایک ڈارے ڈیلن چائس سین میں الجھا دیتی ہے. آخر کار ٹارزان اینتھنی کی کار کو ایک پل سے ٹکرا دیتی ہے اور اس کی جگہ موت ہو جاتی ہے. پھر مہیش سکسینہ ایک کلب میں انجوائے کر رہا ہوتا ہے جب ٹارزان کار کلب کے باہر آ کر اس کا انتظار کرتی ہے. جب مہیش اپنی کار میں بیٹھتا ہے تو ٹارزان اس کو گھسیٹ لے جاتی ہے اور ایک ہائی سپیڈ چیس کے بعد اس کو ایک ٹرک سے ٹکرا دیتی ہے. مہیش بھی مر جاتا ہے. کیلاش چوپڑا کو ٹارزان ایک فیکٹری میں پکڑتی ہے جہاں اس کو ایک ٹیریفائنگ طریقے سے زندہ جلا دیا جاتا ہے. پھر کھرانا کو ٹارزان ایک ابینڈنڈ ہائی وے پر پھنساتی ہے. اس کو ٹارزان ایک کلف سے گرا دیتی ہے جس سے اس کی ہارفائنگ موت ہو جاتی ہے. جب یہ قتل ہونے لگتے ہیں تو پولیس اور راج کے دوستوں کو شک ہونے لگتا ہے کہ یہ سب کون کر رہا ہے. راج کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ اس کی کار ایسے کیسے چل رہی ہے. آخر کار اس کو یہ راز پتہ چلتا ہے کہ اس کی کار میں اس کے باپ ڈیون کی روح ہے. ایک دن راکیش کپور راج کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے مگر ٹارزان کار آخر کار کپور کو بھی مار دیتی ہے. راج یہ دیکھ کر بہت ایموشنل ہو جاتا ہے کہ اس کے باپ نے بدلہ لے لیا مگر اب اس کو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ٹارزان کار کو آگے چلا کر رکھا نہیں جا سکتا کیونکہ اب اس کا کام ختم ہو چکا ہے. اس لیے راج ٹارزان کار کو ایک پانی کے اندر گرا دیتا ہے تاکہ اس کی روح میں ریسٹ کر سکے. فلم ایک ایموشنل نوٹ پر ختم ہوتی ہے جس میں راج کہتے ہیں پاپا اب آپ سکون میں ہیں, میں آپ کو کبھی نہ ہی بھولوں گا. کہانی کی شروعات ایک ٹیلنٹڈ اور آنےسٹ آٹوموبائل انجینئر ڈیون چودھری اجائے دیوگن سے ہوتی ہے. ڈیون ایک بہت ہوشیار اور محنتی انسان ہے جو اپنی ایک نئی اور ایڈوانس کار ڈیزائن کرتا ہے. یہ کار صرف ایک وہیکل نہیں بلکہ ایک ریولوشن ہے آٹوموبائل انڈسٹری میں. اس کی یہ انوینشن دنیا کے بڑے انڈسٹریلسٹس کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے لیکن کچھ لوگ اس کو چوری کرنا چاہتے ہیں. اس سے آگے کی سٹوری آپ کو میری کولیگ احمد حسن قطری بتائیں گا. ڈیون ایک سنگل فادر ہے جو اپنے بیٹے راج چودھری سے بہت پیار کرتا ہے. راج ایک شریف اور معصوم لڑکا ہے جو اپنی کالج لائف انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اس کے سپنے بڑے ہیں مگر اس کی دنیا صرف اس کے باپ ڈیون کے گرد گھومتی ہے. ڈیون چاہتا ہے کہ راج ایک بہترین فیوچر بنائے اور اس کو کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ڈیون اپنی نئی کار کا ڈیزائن لے کر ایک بڑی آٹوموبائل کمپنی کے مالک راکیش کپور کے پاس جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا ڈیزائن استعمال کیا جائے اور انڈسٹری میں ایک نئے دور کا آغاز ہو. مگر کپور اور اس کے کرپٹ بزنس پارٹنرز اینتھنی ڈی کوسٹا, مہیش سکسینہ, کیلاش چوپڑا اور کھرانا ڈیون کے ویژن کو صرف پیسہ بنانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ لوگ ڈیون کی انوینشن کو چرا کر اپنا نام دینا چاہتے ہیں. جب ڈیون ان لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا تو یہ لوگ ایک شڈینتر رچ کر اس کو مار ڈالنے کا فیصلہ کرتے ہیں. ایک رات جب ڈیون اپنی کار کے ساتھ ایک برج سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے یہی کرپٹ بزنس مین لگ جاتے ہیں. یہ لوگ ڈیون کو ایک چھوٹی سی لڑائی کا بہانہ بنا کر روک لیتے ہیں, پھر اس کو مارنے لگتے ہیں. ڈیون ان سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اکیلا ہوتا ہے اور یہ لوگ 4-5. آخر کار وہ بیچارہ ڈیون ایک خونی حملے کا شکار. ایک رات جب ڈیون اپنی نئی کار لے کر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے دشمن اس کا راستہ روک لیتے ہیں. یہ لوگ اس کو دھمکانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنا انوینشن ان کو دے دے مگر ڈیون انکاری کر دیتا ہے. آخر کار وہ بیچارہ ڈیون ایک خونی حملے کا شکار ہو جاتا ہے. وہ لوگ اس کو ایک ندی میں انفیکٹ دیتے ہیں اور اس کی چربی اس کے ساتھ گر جاتی ہے. ڈیون کی موت ہو جاتی ہے اور اس کا سپنا ادھورا رہ جاتا ہے مگر اس کی روح اس دنیا سے جا نہیں پاتی. اس کا جنون, اس کا غصہ اور اس کا دکھ اس کی روح کو شانت نہیں دیتا. ڈیون کی موت کے بعد اس کا بیٹا راج اور اس کی ماں بہت غم میں ڈوب جاتے ہیں. راج بہت اداس رہتا ہے مگر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس کے باپ کے ساتھ کیا ہوا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا لیکن اصل میں یہ ایک پلانڈ مرڈر تھا. کچھ سال گزر جاتے ہیں. راج بڑا ہو جاتا ہے اور اپنے باپ کی یادوں کے ساتھ جیتا ہے.
एक दिन उसको एक पुरानी और टूटी फूटी कार मिलती है। ये कार काफी बुरी हालत में होती है, मगर राज इसको रिपेयर करने का फैसला करता है। वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके इस गाड़ी को एक शानदार, मॉडर्न और पावरफुल स्पोर्ट्स कार बना देता है। लेकिन जो राज नहीं जानता था वो ये था कि ये सिर्फ एक आम कार नहीं थी, ये उसके बाप की रूह से जुड़ी हुई थी। एक रात जब राज सो रहा होता है तो ये कार खुद से चलना शुरू कर देती है। ये एक हॉन्टेड कार बन चुकी होती है जिसमें डेविन की रूह समझ चुकी होती है। ये कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक इंसाफ की मशीन बन चुकी होती है। अब इसका सिर्फ एक मकसद है, उन दुश्मनों से बदला लेना जिन्होंने डेविन को मारा था। एक एक करके डेविन की रूह वाली टार्ज़न चार उन सब दुश्मनों को मारने लगती है। पहले एंथनी कोस्टा रात अपने घर जा रहा होता है जब टार्ज़न कार अचानक उसके सामने आ जाती है। ये कार उसका पीछा करती है और एंथनी को एक डारे डिलन चाइस सीन में उलझा देती है। आखिरकार टार्ज़न एंथनी की कार को एक पुल से टकरा देती है और उसकी जगह मौत हो जाती है। फिर महेश सक्सेना एक क्लब में एंजॉय कर रहा होता है जब टार्ज़न कार क्लब के बाहर आकर उसका इंतजार करती है। जब महेश अपनी कार में बैठता है तो टार्ज़न उसको घसीट ले जाती है और एक हाई स्पीड चेस के बाद उसको एक ट्रक से टकरा देती है। महेश भी मर जाता है। कैलाश चोपड़ा को टार्ज़न एक फैक्ट्री में पकड़ती है जहां उसको एक टेरिफाइंग तरीके से जिंदा जला दिया जाता है। फिर खुराना को टार्ज़न एक अबैंडन्ड हाईवे पर फंसाती है। उसको टार्ज़न एक क्लिफ से गिरा देती है जिससे उसकी हॉरिफाइंग मौत हो जाती है। जब ये कत्ल होने लगते हैं तो पुलिस और राज के दोस्तों को शक होने लगता है कि ये सब कौन कर रहा है। राज को भी समझ नहीं आता कि उसकी कार ऐसे कैसे चल रही है। आखिरकार उसको ये राज पता चलता है कि उसकी कार में उसके बाप डेविन की रूह है। एक दिन राकेश कपूर राज को फंसाने की कोशिश करता है मगर टार्ज़न कार आखिरकार कपूर को भी मार देती है। राज ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है कि उसके बाप ने बदला ले लिया, मगर अब उसको ये भी समझ आता है कि टार्ज़न कार को आगे चला कर रखा नहीं जा सकता क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है। इसलिए राज टार्ज़न कार को एक पानी के अंदर गिरा देता है ताकि उसकी रूह में रेस्ट कर सके। फिल्म एक इमोशनल नोट पर खत्म होती है जिसमें राज कहते हैं, पापा अब आप सुकून में हैं, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। कहानी की शुरुआत एक टैलेंटेड और ऑनेस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर देवेन चौधरी अजय दिवगियन से होती है। देवेन एक बहुत होशियार और मेहनती इंसान है जो अपनी एक नई और एडवांस कार डिजाइन करता है। ये कर सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। उसकी ये इन्वेंशन दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए बहुत मुफीद हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसको चोरी करना चाहते हैं। इससे आगे की स्टोरी आपको मेरी कॉलीग अहमद हसन कतरी बताएंगे। डेविन एक सिंगल फादर है जो अपने बेटे राज चौधरी से बहुत प्यार करता है। राज एक शरीफ और मासूम लड़का है जो अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। उसके सपने बड़े हैं मगर उसकी दुनिया सिर्फ उसके बाप डेविन के गिर्द घूमती है। डेविन चाहता है कि राज एक बेहतरीन फ्यूचर बनाए और उसको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। डेविन अपनी नई कार का डिजाइन लेकर एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक राकेश कपूर के पास जाता है। वो चाहता है कि उसका डिजाइन इस्तेमाल किया जाए और इंडस्ट्री में एक नए दौर का आगाज हो। मगर कपूर और उसके करप्ट बिजनेस पार्टनर्स एंथनी कोस्टा, महेश सक्सेना, कैलाश चोपड़ा और खुराना डेविन के विजन को सिर्फ पैसा बनाने का जरिया समझते हैं। ये लोग डेविन की इन्वेंशन को चुरा कर अपना नाम देना चाहते हैं। जब डेविन इन लोगों के साथ डील नहीं करता तो ये लोग एक षड्यंत्र रच कर उसको मार डालने का फैसला करते हैं। एक रात जब डेविन अपनी कार के साथ एक ब्रिज से गुजर रहा होता है तो उसके पीछे यही करप्ट बिजनेसमैन लग जाते हैं। ये लोग डेविन को एक छोटी सी लड़ाई का बहाना बनाकर रोक लेते हैं, फिर उसको मारने लगते हैं। डेविन उनसे लड़ने की कोशिश करता है मगर वो अकेला होता है और ये लोग 4-5। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार। एक रात जब डेविन अपनी नई कार लेकर जा रहा होता है तो उसके दुश्मन उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये लोग उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि वो अपना इन्वेंशन उनको दे दे, मगर डेविन इनकार कर देता है। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार हो जाता है। वो लोग उसको एक नदी में फेंक देते हैं और उसकी चर्बी उसके साथ गिर जाती है।
डेविन की मौत हो जाती है और उसका सपना अधूरा रह जाता है, मगर उसकी रूह इस दुनिया से जा नहीं पाती। उसका जुनून, उसका गुस्सा और उसका दुख उसकी रूह को शांत नहीं देता। डेविन की मौत के बाद उसका बेटा राज और उसकी माँ बहुत गम में डूब जाते हैं। राज बहुत उदास रहता है, मगर उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके बाप के साथ क्या हुआ। वो समझता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन असल में ये एक प्लान्ड मर्डर था। कुछ साल गुजर जाते हैं, राज बड़ा हो जाता है और अपने बाप की यादों के साथ जीता है। एक दिन उसको एक पुरानी और टूटी फूटी कार मिलती है। ये कार काफी बुरी हालत में होती है, मगर राज इसको रिपेयर करने का फैसला करता है। वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके इस गाड़ी को एक शानदार, मॉडर्न और पावरफुल स्पोर्ट्स कार बना देता है। लेकिन जो राज नहीं जानता था वो ये था कि ये सिर्फ एक आम कार नहीं थी, ये उसके बाप की रूह से जुड़ी हुई थी। एक रात जब राज सो रहा होता है तो ये कार खुद से चलना शुरू कर देती है। ये एक हॉन्टेड कार बन चुकी होती है जिसमें डेविन की रूह समझ चुकी होती है। ये कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक इंसाफ की मशीन बन चुकी होती है। अब इसका सिर्फ एक मकसद है, उन दुश्मनों से बदला लेना जिन्होंने डेविन को मारा था। एक एक करके डेविन की रूह वाली टार्ज़न उन सब दुश्मनों को मारने लगती है। पहले एंथनी कोस्टा रात अपने घर जा रहा होता है जब टार्ज़न कार अचानक उसके सामने आ जाती है। ये कार उसका पीछा करती है और एंथनी को एक डरे डिलन चाइस सीन में उलझा देती है। आखिरकार टार्ज़न एंथनी की कार को एक पुल से टकरा देती है और उसकी जगह मौत हो जाती है। फिर महेश सक्सेना एक क्लब में एंजॉय कर रहा होता है जब टार्ज़न कार क्लब के बाहर आकर उसका इंतजार करती है। जब महेश अपनी कार में बैठता है तो टार्ज़न उसको घसीट ले जाती है और एक हाई स्पीड चेस के बाद उसको एक ट्रक से टकरा देती है। महेश भी मर जाता है। कैलाश चोपड़ा को टार्ज़न एक फैक्ट्री में पकड़ती है जहां उसको एक टेरिफाइंग तरीके से जिंदा जला दिया जाता है। फिर खुराना को टार्ज़न एक अबैंडन्ड हाईवे पर फंसाती है। उसको टार्ज़न एक क्लिफ से गिरा देती है जिससे उसकी हॉरिफाइंग मौत हो जाती है। जब ये कत्ल होने लगते हैं तो पुलिस और राज के दोस्तों को शक होने लगता है कि ये सब कौन कर रहा है। राज को भी समझ नहीं आता कि उसकी कार ऐसे कैसे चल रही है। आखिरकार उसको ये राज पता चलता है कि उसकी कार में उसके बाप डेविन की रूह है। एक दिन राकेश कपूर राज को फंसाने की कोशिश करता है, मगर टार्ज़न कार आखिरकार कपूर को भी मार देती है। राज ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है कि उसके बाप ने बदला ले लिया, मगर अब उसको ये भी समझ आता है कि टार्ज़न कार को आगे चला कर रखा नहीं जा सकता क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है। इसलिए राज टार्ज़न कार को एक पानी के अंदर गिरा देता है ताकि उसकी रूह में रेस्ट कर सके। फिल्म एक इमोशनल नोट पर खत्म होती है जिसमें राज कहते हैं, पापा अब आप सुकून में हैं, मैं आपको कभी ना ही भूलूंगा। कहानी की शुरुआत एक टैलेंटेड और ऑनेस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर डेविन चौधरी अजय दिवगियन से होती है। डेविन एक बहुत होशियार और मेहनती इंसान है जो अपनी एक नई और एडवांस कार डिजाइन करता है। ये कर सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। उसकी ये इन्वेंशन दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए बहुत मुफीद हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसको चोरी करना चाहते हैं। इससे आगे की स्टोरी आपको मेरी कॉलीग अहमद हसन कतरी बताएंगे। डेविन एक सिंगल फादर है जो अपने बेटे राज चौधरी से बहुत प्यार करता है। राज एक शरीफ और मासूम लड़का है जो अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। उसके सपने बड़े हैं, मगर उसकी दुनिया सिर्फ उसके बाप डेविन के गिर्द घूमती है। डेविन चाहता है कि राज एक बेहतरीन फ्यूचर बनाए और उसको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। डेविन अपनी नई कार का डिजाइन लेकर एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक राकेश कपूर के पास जाता है। वो चाहता है कि उसका डिजाइन इस्तेमाल किया जाए और इंडस्ट्री में एक नए दौर का आगाज हो, मगर कपूर और उसके करप्ट बिजनेस पार्टनर्स एंथनी डिकोस्टा, महेश सक्सेना, कैलाश चोपड़ा और खुराना डेविन के विजन को सिर्फ पैसा बनाने का जरिया समझते हैं। ये लोग डेविन की इन्वेंशन को चुरा कर अपना नाम देना चाहते हैं। जब डेविन इन लोगों के साथ डील नहीं करता तो ये लोग एक षड्यंत्र रच कर उसको मार डालने का फैसला करते हैं। एक रात जब डेविन अपनी कार के साथ एक ब्रिज से गुजर रहा होता है तो उसके पीछे यही करप्ट बिजनेसमैन लग जाते हैं। ये लोग डेविन को एक छोटी सी लड़ाई का बहाना बनाकर रोक लेते हैं, फिर उसको मारने लगते हैं। डेविन उनसे लड़ने की कोशिश करता है, मगर वो अकेला होता है और ये लोग 4-5
आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार। एक रात जब डेविन अपनी नाई झाड़ लेकर जा रहा होता है तो उसके दुश्मन उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये लोग उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि वो अपना इन्वेंशन उनको दे दे, मगर डेविन इनकार कर देता है। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार हो जाता है। वो लोग उसको एक नदी में इन्फेक्ट देते हैं और उसकी चर्बी उसके साथ गिर जाती है। डेविन की मौत हो जाती है और उसका सपना अधूरा रह जाता है, मगर उसकी रूह इस दुनिया से जा नहीं पाती। उसका जुनून, उसका गुस्सा और उसका दुख उसकी रूह को शांत नहीं देता। डेविन की मौत के बाद उसका बेटा राज और उसकी माँ बहुत गम में डूब जाते हैं। राज बहुत उदास रहता है, मगर उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके बाप के साथ क्या हुआ। वो समझता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन असल में ये एक प्लान्ड मर्डर था। कुछ साल गुजर जाते हैं, राज बड़ा हो जाता है और अपने बाप की यादों के साथ जीता है। एक दिन उसको एक पुरानी और टूटी फूटी कार मिलती है। ये कार काफी बुरी हालत में होती है, मगर राज इसको रिपेयर करने का फैसला करता है। वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके इस गाड़ी को एक शानदार, मॉडर्न और पावरफुल स्पोर्ट्स कार बना देता है। लेकिन जो राज नहीं जानता था वो ये था कि ये सिर्फ एक आम कार नहीं थी, ये उसके बाप की रूह से जुड़ी हुई थी। एक रात जब राज सो रहा होता है तो ये कार खुद से चलना शुरू कर देती है। ये एक हॉन्टेड कार बन चुकी होती है जिसमें डेविन की रूह समझ चुकी होती है। ये कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक इंसाफ की मशीन बन चुकी होती है। अब इसका सिर्फ एक मकसद है, उन दुश्मनों से बदला लेना जिन्होंने डेविन को मारा था। एक एक करके डेविन की रूह वाली टार्ज़न चार उन सब दुश्मनों को मारने लगती है। पहले एंथनी कोस्टा रात अपने घर जा रहा होता है जब टार्ज़न कार अचानक उसके सामने आ जाती है। ये कार उसका पीछा करती है और एंथनी को एक डायरेक्ट डिलन चाइस सीन में उलझा देती है। आखिरकार टार्ज़न एंथनी की कार को एक पुल से टकरा देती है और उसकी जघन्य मौत हो जाती है। फिर महेश सक्सेना एक क्लब में एंजॉय कर रहा होता है जब टार्ज़न कार क्लब के बाहर आकर उसका इंतजार करती है। जब महेश अपनी कार में बैठता है तो टार्ज़न उसको घसीट ले जाती है और एक हाई स्पीड चेस के बाद उसको एक ट्रक से टकरा देती है। महेश भी मर जाता है। कैलाश चोपड़ा को टार्ज़न एक फैक्ट्री में पकड़ती है जहां उसको एक टेरिफाइंग तरीके से जिंदा जला दिया जाता है। फिर खुराना को टार्ज़न एक अबैंडन्ड हाईवे पर फंसाती है। उसको टार्ज़न एक क्लिफ से गिरा देती है जिससे उसकी हॉरिफाइंग मौत हो जाती है। जब ये कत्ल होने लगते हैं तो पुलिस और राज के दोस्तों को शक होने लगता है कि ये सब कौन कर रहा है। राज को भी समझ नहीं आता कि उसकी कार ऐसे कैसे चल रही है। आखिरकार उसको ये राज पता चलता है कि उसकी कार में उसके बाप डेविन की रूह है। एक दिन राकेश कपूर राज को फंसाने की कोशिश करता है, मगर टार्ज़न कार आखिरकार कपूर को भी मार देती है। राज ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है कि उसके बाप ने बदला ले लिया, मगर अब उसको ये भी समझ आता है कि टार्ज़न कार को आगे चला कर रखा नहीं जा सकता क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है। इसलिए राज टार्ज़न कार को एक पानी के अंदर गिरा देता है ताकि उसकी रूह में रेस्ट कर सके। फिल्म एक इमोशनल नोट पर खत्म होती है जिसमें राज कहते हैं, पापा अब आप सुकून में हैं, मैं आपको कभी ना ही भूलूंगा। कहानी की शुरुआत एक टैलेंटेड और ऑनेस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर डेविन चौधरी अजय दिवगियन से होती है। डेविन एक बहुत होशियार और मेहनती इंसान है जो अपनी एक नई और एडवांस कार डिजाइन करता है। ये कर सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। उसकी ये इन्वेंशन दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए बहुत मुफीद हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसको चोरी करना चाहते हैं। इससे आगे की स्टोरी आपको मेरी कॉलीग अहमद हसन कतरी बताएंगे। डेविन एक सिंगल फादर है जो अपने बेटे राज चौधरी से बहुत प्यार करता है। राज एक शरीफ और मासूम लड़का है जो अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। उसके सपने बड़े हैं, मगर उसकी दुनिया सिर्फ उसके बाप डेविन के गिर्द घूमती है। डेविन चाहता है कि राज एक बेहतरीन फ्यूचर बनाए और उसको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। डेविन अपनी नई कार का डिजाइन लेकर एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक राकेश कपूर के पास जाता है। वो चाहता है कि उसका डिजाइन इस्तेमाल किया जाए और इंडस्ट्री में एक नए दौर का आगाज हो, मगर कपूर और उसके करप्ट बिजनेस पार्टनर्स एंथनी डिकोस्टा, महेश सक्सेना, कैलाश चोपड़ा और खुराना डेविन के विजन को सिर्फ पैसा बनाने का जरिया समझते हैं।
ये लोग डेविन की इन्वेंशन को चुरा कर अपना नाम देना चाहते हैं। जब डेविन इन लोगों के साथ डील नहीं करता तो ये लोग एक षड्यंत्र रच कर उसको मार डालने का फैसला करते हैं। एक रात जब डेविन अपनी चार के साथ एक ब्रिज से गुजर रहा होता है तो उसके पीछे यही करप्ट बिजनेसमैन लग जाते हैं। ये लोग डेविन को एक छोटी सी लड़ाई का बहाना बनाकर रोक लेते हैं, फिर उसको मारने लगते हैं। डेविन उनसे लड़ने की कोशिश करता है मगर वो अकेला होता है और ये लोग 4-5। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार। एक रात जब डेविन अपनी नई चार लेकर जा रहा होता है तो उसके दुश्मन उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये लोग उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि वो अपना इन्वेंशन उनको दे दे, मगर डेविन इनकार कर देता है। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार हो जाता है। वो लोग उसको एक नदी में फेंक देते हैं और उसकी चार भी उसके साथ गिर जाती है। डेविन की मौत हो जाती है और उसका सपना अधूरा रह जाता है, मगर उसकी रूह इस दुनिया से जा नहीं पाती। उसका जुनून, उसका गुस्सा और उसका दुख उसकी रूह को शांत नहीं देता। डेविन की मौत के बाद उसका बेटा राज और उसकी माँ बहुत गम में डूब जाते हैं। राज बहुत उदास रहता है मगर उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके बाप के साथ क्या हुआ। वो समझता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन असल में ये एक प्लान्ड मर्डर था। कुछ साल गुजर जाते हैं, राज बड़ा हो जाता है और अपने बाप की यादों के साथ जीता है। एक दिन उसको एक पुरानी और टूटी फूटी कार मिलती है। ये कार काफी बुरी हालत में होती है मगर राज इसको रिपेयर करने का फैसला करता है। वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके इस गाड़ी को एक शानदार, मॉडर्न और पावरफुल स्पोर्ट्स कार बना देता है। लेकिन जो राज नहीं जानता था वो ये था कि ये सिर्फ एक आम कार नहीं थी, ये उसके बाप की रूह से जुड़ी हुई थी। एक रात जब राज सो रहा होता है तो ये कार खुद से चलना शुरू कर देती है। ये एक हॉन्टेड कार बन चुकी होती है जिसमें डेविन की रूह समझ चुकी होती है। ये कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक इंसाफ की मशीन बन चुकी होती है। अब इसका सिर्फ एक मकसद है, उन दुश्मनों से बदला लेना जिन्होंने डेविन को मारा था। एक एक करके डेविन की रूह वाली टार्ज़न चार उन सब दुश्मनों को मारने लगती है। पहले एंथनी कोस्टा रात अपने घर जा रहा होता है जब टार्ज़न कार अचानक उसके सामने आ जाती है। ये कार उसका पीछा करती है और एंथनी को एक डारे डिलनवेल चाइस सीन में उलझा देती है। आखिरकार टार्ज़न एंथनी की कार को एक पुल से टकरा देती है और उसकी जघन्य मौत हो जाती है। फिर महेश सक्सेना एक क्लब में एंजॉय कर रहा होता है जब टार्ज़न कार क्लब के बाहर आकर उसका इंतजार करती है। जब महेश अपनी कार में बैठता है तो टार्ज़न उसको घसीट ले जाती है और एक हाई स्पीड चेस के बाद उसको एक ट्रक से टकरा देती है। महेश भी मर जाता है। कैलाश चोपड़ा को टार्ज़न एक फैक्ट्री में पकड़ती है जहां उसको एक टेरिफाइंग तरीके से जिंदा जला दिया जाता है। फिर खुराना को टार्ज़न एक अबैंडन्ड हाईवे पर फंसाती है। उसको टार्ज़न एक क्लिफ से गिरा देती है जिससे उसकी हॉरिफाइंग मौत हो जाती है। जब ये कत्ल होने लगते हैं तो पुलिस और राज के दोस्तों को शक होने लगता है कि ये सब कौन कर रहा है। राज को भी समझ नहीं आता कि उसकी कार ऐसे कैसे चल रही है। आखिरकार उसको ये राज पता चलता है कि उसकी कार में उसके बाप डेविन की रूह है। एक दिन राकेश कपूर राज को फंसाने की कोशिश करता है मगर टार्ज़न कार आखिरकार कपूर को भी मार देती है। राज ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है कि उसके बाप ने बदला ले लिया, मगर अब उसको ये भी समझ आता है कि टार्ज़न कार को आगे चला कर रखा नहीं जा सकता क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है। इसलिए राज टार्ज़न कार को एक पानी के अंदर गिरा देता है ताकि उसकी रूह में रेस्ट कर सके। फिल्म एक इमोशनल नोट पर खत्म होती है जिसमें राज कहते हैं, पापा अब आप सुकून में हैं, मैं आपको कभी ना ही भूलूंगा। कहानी की शुरुआत एक टैलेंटेड और ऑनेस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर डेविन चौधरी अजय दिवगियन से होती है। डेविन एक बहुत होशियार और मेहनती इंसान है जो अपनी एक नई और एडवांस कार डिजाइन करता है। ये कर सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। उसकी ये इन्वेंशन दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए बहुत मुफीद हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसको चोरी करना चाहते हैं। इससे आगे की स्टोरी आपको मेरी कॉलीग अहमद हसन कतरी बताएंगे। डेविन एक सिंगल फादर है जो अपने बेटे राज चौधरी से बहुत प्यार करता है। राज एक शरीफ और मासूम लड़का है जो अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। उसके
उसके सपने बड़े हैं, मगर उसकी दुनिया सिर्फ उसके बाप डेविन के गिर्द घूमती है। डेविन चाहता है कि राज एक बेहतरीन फ्यूचर बनाए और उसको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। डेविन अपनी नई कार का डिजाइन लेकर एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक राकेश कपूर के पास जाता है। वो चाहता है कि उसका डिजाइन इस्तेमाल किया जाए और इंडस्ट्री में एक नए दौर का आगाज हो। मगर कपूर और उसके करप्ट बिजनेस पार्टनर्स एंथनी डिकोस्टा, महेश सक्सेना, कैलाश चोपड़ा और खुराना डेविन के विजन को सिर्फ पैसा बनाने का जरिया समझते हैं। ये लोग डेविन की इन्वेंशन को चुरा कर अपना नाम देना चाहते हैं। जब डेविन इन लोगों के साथ डील नहीं करता तो ये लोग एक षड्यंत्र रच कर उसको मार डालने का फैसला करते हैं। एक रात जब डेविन अपनी कार के साथ एक ब्रिज से गुजर रहा होता है तो उसके पीछे यही करप्ट बिजनेसमैन लग जाते हैं। ये लोग डेविन को एक छोटी सी लड़ाई का बहाना बनाकर रोक लेते हैं, फिर उसको मारने लगते हैं। डेविन उनसे लड़ने की कोशिश करता है मगर वो अकेला होता है और ये लोग 4-5। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार। एक रात जब डेविन अपनी नई कार लेकर जा रहा होता है तो उसके दुश्मन उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये लोग उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि वो अपना इन्वेंशन उनको दे दे, मगर डेविन इनकार कर देता है। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार हो जाता है। वो लोग उसको एक नदी में इन्फेक्ट देते हैं और उसकी कार भी उसके साथ गिर जाती है। डेविन की मौत हो जाती है और उसका सपना अधूरा रह जाता है, मगर उसकी रूह इस दुनिया से जा नहीं पाती। उसका जुनून, उसका गुस्सा और उसका दुख उसकी रूह को शांत नहीं देता। डेविन की मौत के बाद उसका बेटा राज और उसकी माँ बहुत गम में डूब जाते हैं। राज बहुत उदास रहता है, मगर उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके बाप के साथ क्या हुआ। वो समझता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन असल में ये एक प्लान्ड मर्डर था। कुछ साल गुजर जाते हैं, राज बड़ा हो जाता है और अपने बाप की यादों के साथ जीता है। एक दिन उसको एक पुरानी और टूटी फूटी कार मिलती है। ये कार काफी बुरी हालत में होती है, मगर राज इसको रिपेयर करने का फैसला करता है। वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके इस गाड़ी को एक शानदार, मॉडर्न और पावरफुल स्पोर्ट्स कार बना देता है। लेकिन जो राज नहीं जानता था वो ये था कि ये सिर्फ एक आम कार नहीं थी, ये उसके बाप की रूह से जुड़ी हुई थी। एक रात जब राज सो रहा होता है तो ये कार खुद से चलना शुरू कर देती है। ये एक हॉन्टेड कार बन चुकी होती है जिसमें डेविन की रूह समझ चुकी होती है। ये कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक इंसाफ की मशीन बन चुकी होती है। अब इसका सिर्फ एक मकसद है, उन दुश्मनों से बदला लेना जिन्होंने डेविन को मारा था। एक एक करके डेविन की रोली टार्जन चार उन सब दुश्मनों को मारने लगती है। पहले एंथनी डिकोस्टा रात अपने घर जा रहा होता है जब टार्जन कार अचानक उसके सामने आ जाती है। ये कार उसका पीछा करती है और एंथनी को एक डारे डिलनवेल चाइस सीन में उलझा देती है। आखिरकार टार्जन एंथनी की कार को एक पुल से टकरा देती है और उसकी जघन्य मौत हो जाती है। फिर महेश सक्सेना एक क्लब में एंजॉय कर रहा होता है जब टार्जन कार क्लब के बाहर आकर उसका इंतजार करती है। जब महेश अपनी कार में बैठता है तो टार्जन उसको घसीट ले जाती है और एक हाई स्पीड चेस के बाद उसको एक ट्रक से टकरा देती है। महेश भी मर जाता है। कैलाश चोपड़ा को टार्जन एक फैक्ट्री में पकड़ती है जहां उसको एक टेरिफाइंग तरीके से जिंदा जला दिया जाता है। फिर खुराना को टार्जन एक अबैंडन्ड हाईवे पर फंसाती है। उसको टार्जन एक क्लिफ से गिरा देती है जिससे उसकी हॉरिफाइंग मौत हो जाती है। जब ये कत्ल होने लगते हैं तो पुलिस और राज के दोस्तों को शक होने लगता है कि ये सब कौन कर रहा है। राज को भी समझ नहीं आता कि उसकी कार ऐसे कैसे चल रही है। आखिरकार उसको ये राज पता चलता है कि उसकी कार में उसके बाप डेविन की रूह है। एक दिन राकेश कपूर राज को फंसाने की कोशिश करता है, मगर टार्जन कार आखिरकार कपूर को भी मार देती है। राज ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है कि उसके बाप ने बदला ले लिया, मगर अब उसको ये भी समझ आता है कि टार्जन कार को आगे चला कर रखा नहीं जा सकता क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है। इसलिए राज टार्जन कार को एक पानी के अंदर गिरा देता है ताकि उसकी रूह में रेस्ट कर सके। फिल्म एक इमोशनल नोट पर खत्म होती है जिसमें राज कहते हैं, पापा अब आप सुकून में हैं, मैं आपको कभी ना ही भूलूंगा। कहानी की शुरुआत एक टैलेंटेड और ऑनेस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर डेविन चौधरी अजय दिवगियन से होती है। डेविन एक बहुत होशियार और मेहनती इंसान है जो अपनी एक नई और एडवांस कार डिजाइन करता है।
یہ کر صرف ایک وہیکل نہیں بلکہ ایک ریولوشن ہے آٹوموبیلی انڈسٹری میں۔ اس کی یہ انوینشن دنیا کے بڑے انڈسٹریلسٹس کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو چوری کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے آگے کی سٹوری آپ کو میری کالیگ احمد حسن قطری بتائیں گے۔ ڈیون ایک سنگل فادر ہے جو اپنے بیٹے راج چودھری سے بہت پیار کرتا ہے۔ راج ایک شریف اور معصوم لڑکا ہے جو اپنی کالج لائف انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے سپنے بڑے ہیں مگر اس کی دنیا صرف اس کے باپ ڈیون کے گرد گھومتی ہے۔ ڈیون چاہتا ہے کہ راج ایک بہترین فیوچر بنائے اور اس کو کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈیون اپنی نئی کار کا ڈیزائن لے کر ایک بڑی آٹوموبائل کمپنی کے مالک راکیش کپور کے پاس جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا ڈیزائن استعمال کیا جائے اور انڈسٹری میں ایک نئے دور کا آغاز ہو، مگر کپور اور اس کے کرپٹ بزنس پارٹنرز اینتھنی ڈی کوسٹا، مہیش سکسینہ، کیلاش چوپڑا اور کھرانا ڈیون کے ویژن کو صرف پیسہ بنانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ ڈیون کی انوینشن کو چرا کر اپنا نام دینا چاہتے ہیں۔ جب ڈیون ان لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا تو یہ لوگ ایک ષڈیانتر رچ کر اس کو مار ڈالنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک رات جب ڈیون اپنی کار کے ساتھ ایک برج سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے یہی کرپٹ بزنس مین لگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ڈیون کو ایک چھوٹی سی لڑائی کا بہانہ بنا کر روک لیتے ہیں، پھر اس کو مارنے لگتے ہیں۔ ڈیون ان سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اکیلا ہوتا ہے اور یہ لوگ 4-5۔ آخر کار وہ بیچارہ ڈیون ایک خونی حملے کا شکار۔ ایک رات جب ڈیون اپنی نئی کار لے کر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے دشمن اس کا راستہ روک لیتے ہیں۔ یہ لوگ اس کو دھمکانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنا انوینشن ان کو دے دے، مگر ڈیون انکار کر دیتا ہے۔ آخر کار وہ بیچارہ ڈیون ایک خونی حملے کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اس کو ایک ندی میں پھینک دیتے ہیں اور اس کی چربی اس کے ساتھ گر جاتی ہے۔ ڈیون کی موت ہو جاتی ہے اور اس کا سپنا ادھورا رہ جاتا ہے، مگر اس کی روح اس دنیا سے جا نہیں پاتی۔ اس کا جنون، اس کا غصہ اور اس کا دکھ اس کی روح کو شانت نہیں دیتا۔ ڈیون کی موت کے بعد اس کا بیٹا راج اور اس کی ماں بہت غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ راج بہت اداس رہتا ہے مگر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس کے باپ کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا لیکن اصل میں یہ ایک پلانڈ مرڈر تھا۔ کچھ سال گزر جاتے ہیں، راج بڑا ہو جاتا ہے اور اپنے باپ کی یادوں کے ساتھ جیتا ہے۔ ایک دن اس کو ایک پرانی اور ٹوٹی پھوٹی کار ملتی ہے۔ یہ کار کافی بری حالت میں ہوتی ہے مگر راج اس کو ریپیئر کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنی سکلز کا استعمال کر کے اس گاڑی کو ایک شاندار، ماڈرن اور پاورفل سپورٹس کار بنا دیتا ہے۔ لیکن جو راج نہیں جانتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ صرف ایک عام کار نہیں تھی، یہ اس کے باپ کی روح سے جڑی ہوئی تھی۔ ایک رات جب راج سو رہا ہوتا ہے تو یہ کار خود سے چلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ایک ہانٹڈ کار بن چکی ہوتی ہے جس میں ڈیون کی روح سمجھ چکی ہوتی ہے۔ یہ کار صرف ایک وہیکل نہیں بلکہ ایک انصاف کی مشین بن چکی ہوتی ہے۔ اب اس کا صرف ایک مقصد ہے، ان دشمنوں سے بدلہ لینا جنہوں نے ڈیون کو مارا تھا۔ ایک ایک کر کے ڈیون کی روح والی ٹارزان چار ان سب دشمنوں کو مارنے لگتی ہے۔ پہلے اینتھنی ڈی کوسٹا رات اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے جب ٹارزان کار اچانک اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ کار اس کا پیچھا کرتی ہے اور اینتھنی کو ایک ڈرے ڈلن ویل چیس سین میں الجھا دیتی ہے۔ آخر کار ٹارزان اینتھنی کی کار کو ایک پل سے ٹکرا دیتی ہے اور اس کی جگہانیہ موت ہو جاتی ہے۔ پھر مہیش سکسینہ ایک کلب میں انجوائے کر رہا ہوتا ہے جب ٹارزان کار کلب کے باہر آ کر اس کا انتظار کرتی ہے۔ جب مہیش اپنی کار میں بیٹھتا ہے تو ٹارزان اس کو گھسیٹ لے جاتی ہے اور ایک ہائی سپیڈ چیس کے بعد اس کو ایک ٹرک سے ٹکرا دیتی ہے۔ مہیش بھی مر جاتا ہے۔ کیلاش چوپڑا کو ٹارزان ایک فیکٹری میں پکڑتی ہے جہاں اس کو ایک ٹیریفائنگ طریقے سے زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ پھر کھرانا کو ٹارزان ایک ابینڈنڈ ہائی وے پر پھنساتی ہے۔ اس کو ٹارزان ایک کلف سے گرا دیتی ہے جس سے اس کی ہارفائنگ موت ہو جاتی ہے۔ جب یہ قتل ہونے لگتے ہیں تو پولیس اور راج کے دوستوں کو شک ہونے لگتا ہے کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ راج کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ اس کی کار ایسے کیسے چل رہی ہے۔ آخر کار اس کو یہ راز پتہ چلتا ہے کہ اس کی کار میں اس کے باپ ڈیون کی روح ہے۔ ایک دن راکیش کپور راج کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے مگر ٹارزان کار آخر کار کپور کو بھی مار دیتی ہے۔ راج یہ دیکھ کر بہت ایموشنل ہو جاتا ہے کہ اس کے باپ نے بدلہ لے لیا
मगर अब उसको ये भी समझ आता है कि टार्जन कार को आगे चला कर रखा नहीं जा सकता, क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है। इसलिए राज टार्जन कार को एक पानी के अंदर गिरा देता है ताकि उसकी रूह मेन रेस्ट कर सके। फिल्म एक इमोशनल नोट पर खत्म होती है जिसमें राज कहते हैं, पापा अब आप सुकून में हैं, मैं आपको कभी ना ही भूलूंगा। कहानी की शुरुआत एक टैलेंटेड और ऑनेस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर डेविन चौधरी अजय दिवगियन से होती है। डेविन एक बहुत होशियार और मेहनती इंसान है जो अपनी एक नई और एडवांस कार डिजाइन करता है। ये कर सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। उसकी ये इन्वेंशन दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए बहुत मुफीद हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसको चोरी करना चाहते हैं। इससे आगे की स्टोरी आपको मेरी कॉलीग अहमद हसन कतरी बताएंगे। डेविन एक सिंगल फादर है जो अपने बेटे राज चौधरी से बहुत प्यार करता है। राज एक शरीफ और मासूम लड़का है जो अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। उसके सपने बड़े हैं मगर उसकी दुनिया सिर्फ उसके बाप डेविन के गिर्द घूमती है। डेविन चाहता है कि राज एक बेहतरीन फ्यूचर बनाए और उसको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। डेविन अपनी नई कार का डिजाइन लेकर एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक राकेश कपूर के पास जाता है। वो चाहता है कि उसका डिजाइन इस्तेमाल किया जाए और इंडस्ट्री में एक नए दौर का आगाज हो। मगर कपूर और उसके करप्ट बिजनेस पार्टनर्स एंथनी डिकोस्टा, महेश सक्सेना, कैलाश चोपड़ा और खुराना डेविन के विजन को सिर्फ पैसा बनाने का जरिया समझते हैं। ये लोग डेविन की इन्वेंशन को चुरा कर अपना नाम देना चाहते हैं। जब डेविन इन लोगों के साथ डील नहीं करता तो ये लोग एक षड्यंत्र रच कर उसको मार डालने का फैसला करते हैं। एक रात जब डेविन अपनी कार के साथ एक ब्रिज से गुजर रहा होता है तो उसके पीछे यही करप्ट बिजनेसमैन लग जाते हैं। ये लोग डेविन को एक छोटी सी लड़ाई का बहाना बनाकर रोक लेते हैं, फिर उसको मारने लगते हैं। डेविन उनसे लड़ने की कोशिश करता है मगर वो अकेला होता है और ये लोग 4-5। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार। एक रात जब डेविन अपनी नई कार लेकर जा रहा होता है तो उसके दुश्मन उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये लोग उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि वो अपना इन्वेंशन उनको दे दे, मगर डेविन इनकार कर देता है। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार हो जाता है। वो लोग उसको एक नदी में इन्फेक्ट देते हैं और उसकी कार भी उसके साथ गिर जाती है। डेविन की मौत हो जाती है और उसका सपना अधूरा रह जाता है, मगर उसकी रूह इस दुनिया से जा नहीं पाती। उसका जुनून, उसका गुस्सा और उसका दुख उसकी रूह को शांत नहीं देता। डेविन की मौत के बाद उसका बेटा राज और उसकी माँ बहुत गम में डूब जाते हैं। राज बहुत उदास रहता है मगर उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके बाप के साथ क्या हुआ। वो समझता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन असल में ये एक प्लान्ड मर्डर था। कुछ साल गुजर जाते हैं। राज बड़ा हो जाता है और अपने बाप की यादों के साथ जीता है। एक दिन उसको एक पुरानी और टूटी फूटी कार मिलती है। ये कार काफी बुरी हालत में होती है मगर राज इसको रिपेयर करने का फैसला करता है। वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके इस गाड़ी को एक शानदार, मॉडर्न और पावरफुल स्पोर्ट्स कार बना देता है। लेकिन जो राज नहीं जानता था वो ये था कि ये सिर्फ एक आम कार नहीं थी, ये उसके बाप की रूह से जुड़ी हुई थी। एक रात जब राज सो रहा होता है तो ये कार खुद से चलना शुरू कर देती है। ये एक हॉन्टेड कार बन चुकी होती है जिसमें डेविन की रूह समझ चुकी होती है। ये कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक इंसाफ की मशीन बन चुकी होती है। अब इसका सिर्फ एक मकसद है, उन दुश्मनों से बदला लेना जिन्होंने डेविन को मारा था। एक एक करके डेविन की रूह वाली टार्जन कार उन सब दुश्मनों को मारने लगती है। पहले एंथनी डिकोस्टा रात अपने घर जा रहा होता है जब टार्जन कार अचानक उसके सामने आ जाती है। ये कार उसका पीछा करती है और एंथनी को एक डरे दिलनवेल चाइस सीन में उलझा देती है। आखिरकार टार्जन एंथनी की कार को एक पुल से टकरा देती है और उसकी जघन्य मौत हो जाती है। फिर महेश सक्सेना एक क्लब में एंजॉय कर रहा होता है जब टार्जन कार क्लब के बाहर आकर उसका इंतजार करती है। जब महेश अपनी कार में बैठता है तो टार्जन उसको घसीट ले जाती है और एक हाई स्पीड चेस के बाद उसको एक ट्रक से टकरा देती है। महेश भी मर जाता है। कैलाश चोपड़ा को टार्जन एक फैक्ट्री में पकड़ती है जहां उसको एक टेरिफाइंग तरीके से जिंदा जला दिया जाता है। फिर खुराना को टार्जन एक अबैंडन्ड हाईवे पर फंसाती है। उसको टार्जन एक क्लिफ से गिरा देती है
जिससे उसकी हॉरिफाइंग मौत हो जाती है। जब ये कत्ल होने लगते हैं तो पुलिस और राज के दोस्तों को शक होने लगता है कि ये सब कौन कर रहा है। राज को भी समझ नहीं आता कि उसकी कार ऐसे कैसे चल रही है। आखिरकार उसको ये राज पता चलता है कि उसकी कार में उसके बाप डेविन की रूह है। एक दिन राकेश कपूर राज को फंसाने की कोशिश करता है, मगर टार्जन कार आखिरकार कपूर को भी मार देती है। राज ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है कि उसके बाप ने बदला ले लिया, मगर अब उसको ये भी समझ आता है कि टार्जन कार को आगे चला कर रखा नहीं जा सकता, क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है। इसलिए राज टार्जन कार को एक पानी के अंदर गिरा देता है ताकि उसकी रूह में रेस्ट कर सके। फिल्म एक इमोशनल नोट पर खत्म होती है, जिसमें राज कहते हैं, पापा अब आप सुकून में हैं, मैं आपको कभी ना ही भूलूंगा। कहानी की शुरुआत एक टैलेंटेड और ऑनेस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर डेविन चौधरी अजय दिवगन से होती है। डेविन एक बहुत होशियार और मेहनती इंसान है जो अपनी एक नई और एडवांस कार डिजाइन करता है। ये कर सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। उसकी ये इन्वेंशन दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए बहुत मुफीद हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसको चोरी करना चाहते हैं। इससे आगे की स्टोरी आपको मेरी कॉलीग अहमद हसन कतरी बताएंगे। डेविन एक सिंगल फादर है जो अपने बेटे राज चौधरी से बहुत प्यार करता है। राज एक शरीफ और मासूम लड़का है जो अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। उसके सपने बड़े हैं, मगर उसकी दुनिया सिर्फ उसके बाप डेविन के गिर्द घूमती है। डेविन चाहता है कि राज एक बेहतरीन फ्यूचर बनाए और उसको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। डेविन अपनी नई कार का डिजाइन लेकर एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक राकेश कपूर के पास जाता है। वो चाहता है कि उसका डिजाइन इस्तेमाल किया जाए और इंडस्ट्री में एक नए दौर का आगाज हो, मगर कपूर और उसके करप्ट बिजनेस पार्टनर्स एंथनी डिकोस्टा, महेश सक्सेना, कैलाश चोपड़ा और खुराना डेविन के विजन को सिर्फ पैसा बनाने का जरिया समझते हैं। ये लोग डेविन की इन्वेंशन को चुरा कर अपना नाम देना चाहते हैं। जब डेविन इन लोगों के साथ डील नहीं करता तो ये लोग एक षड्यंत्र रच कर उसको मार डालने का फैसला करते हैं। एक रात जब डेविन अपनी कार के साथ एक ब्रिज से गुजर रहा होता है तो उसके पीछे यही करप्ट बिजनेसमैन लग जाते हैं। ये लोग डेविन को एक छोटी सी लड़ाई का बहाना बनाकर रोक लेते हैं, फिर उसको मारने लगते हैं। डेविन उनसे लड़ने की कोशिश करता है, मगर वो अकेला होता है और ये लोग 4-5। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार। एक रात जब डेविन अपनी नई कार लेकर जा रहा होता है तो उसके दुश्मन उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये लोग उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि वो अपना इन्वेंशन उनको दे दे, मगर डेविन इनकार कर देता है। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार हो जाता है। वो लोग उसको एक नदी में फेंक देते हैं और उसकी कार भी उसके साथ गिर जाती है। डेविन की मौत हो जाती है और उसका सपना अधूरा रह जाता है, मगर उसकी रूह इस दुनिया से जा नहीं पाती। उसका जुनून, उसका गुस्सा और उसका दुख उसकी रूह को शांत नहीं देता। डेविन की मौत के बाद उसका बेटा राज और उसकी माँ बहुत गम में डूब जाते हैं। राज बहुत उदास रहता है, मगर उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके बाप के साथ क्या हुआ। वो समझता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन असल में ये एक प्लान्ड मर्डर था। कुछ साल गुजर जाते हैं। राज बड़ा हो जाता है और अपने बाप की यादों के साथ जीता है। एक दिन उसको एक पुरानी और टूटी फूटी कार मिलती है। ये कार काफी बुरी हालत में होती है, मगर राज इसको रिपेयर करने का फैसला करता है। वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके इस गाड़ी को एक शानदार, मॉडर्न और पावरफुल स्पोर्ट्स कार बना देता है। लेकिन जो राज नहीं जानता था वो ये था कि ये सिर्फ एक आम कार नहीं थी, ये उसके बाप की रूह से जुड़ी हुई थी। एक रात जब राज सो रहा होता है तो ये कार खुद से चलना शुरू कर देती है। ये एक हॉन्टेड कार बन चुकी होती है जिसमें डेविन की रूह समझ चुकी होती है। ये कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक इंसाफ की मशीन बन चुकी होती है। अब इसका सिर्फ एक मकसद है, उन दुश्मनों से बदला लेना जिन्होंने डेविन को मारा था। एक एक करके डेविन की रूह वाली टार्जन कार उन सब दुश्मनों को मारने लगती है। पहले एंथनी डिकोस्टा रात अपने घर जा रहा होता है जब टार्जन कार अचानक उसके सामने आ जाती है। ये कार उसका पीछा करती है और एंथनी को एक डरे दिलन वाले चाइस सीन में उलझा देती है।
आखिरकार टार्जन एंथनी की कार को एक पुल से टक्कर देती है और उसकी जघन्य मौत हो जाती है। फिर महेश सक्सेना एक क्लब में एंजॉय कर रहा होता है जब टार्जन कार क्लब के बाहर आकर उसका इंतजार करती है। जब महेश अपनी कार में बैठता है तो टार्जन उसको घसीट ले जाती है और एक हाई स्पीड चेस के बाद उसको एक ट्रक से टक्कर देती है। महेश भी मर जाता है। कैलाश चोपड़ा को टार्जन एक फैक्ट्री में पकड़ती है जहां उसको एक टेरिफाइंग तरीके से जिंदा जला दिया जाता है। फिर खुराना को टार्जन एक अबैंडन्ड हाईवे पर फंसाती है। उसको टार्जन एक क्लिफ से गिरा देती है जिससे उसकी हॉरिफाइंग मौत हो जाती है। जब ये कत्ल होने लगते हैं तो पुलिस और राज के दोस्तों को शक होने लगता है कि ये सब कौन कर रहा है। राज को भी समझ नहीं आता कि उसकी कार ऐसे कैसे चल रही है। आखिरकार उसको ये राज पता चलता है कि उसकी कार में उसके बाप डेविन की रूह है। एक दिन राकेश कपूर राज को फंसाने की कोशिश करता है मगर टार्जन कार आखिरकार कपूर को भी मार देती है। राज ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है कि उसके बाप ने बदला ले लिया, मगर अब उसको ये भी समझ आता है कि टार्जन कार को आगे चला कर रखा नहीं जा सकता क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है। इसलिए राज टार्जन कार को एक पानी के अंदर गिरा देता है ताकि उसकी रूह में रेस्ट कर सके। फिल्म एक इमोशनल नोट पर खत्म होती है जिसमें राज कहते हैं, पापा अब आप सुकून में हैं, मैं आपको कभी ना ही भूलूंगा। कहानी की शुरुआत एक टैलेंटेड और ऑनेस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर डेविन चौधरी अजय दिवगियन से होती है। डेविन एक बहुत होशियार और मेहनती इंसान है जो अपनी एक नई और एडवांस कार डिजाइन करता है। ये कर सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। उसकी ये इन्वेंशन दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए बहुत मुफीद हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसको चोरी करना चाहते हैं। इससे आगे की स्टोरी आपको मेरी कॉलीग अहमद हसन कतरी बताएंगे। डेविन एक सिंगल फादर है जो अपने बेटे राज चौधरी से बहुत प्यार करता है। राज एक शरीफ और मासूम लड़का है जो अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। उसके सपने बड़े हैं मगर उसकी दुनिया सिर्फ उसके बाप डेविन के गिर्द घूमती है। डेविन चाहता है कि राज एक बेहतरीन फ्यूचर बनाए और उसको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। डेविन अपनी नई कार का डिजाइन लेकर एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक राकेश कपूर के पास जाता है। वो चाहता है कि उसका डिजाइन इस्तेमाल किया जाए और इंडस्ट्री में एक नए दौर का आगाज हो। मगर कपूर और उसके करप्ट बिजनेस पार्टनर्स एंथनी डिकोस्टा, महेश सक्सेना, कैलाश चोपड़ा और खुराना डेविन के विजन को सिर्फ पैसा बनाने का जरिया समझते हैं। ये लोग डेविन की इन्वेंशन को चुरा कर अपना नाम देना चाहते हैं। जब डेविन इन लोगों के साथ डील नहीं करता तो ये लोग एक षड्यंत्र रच कर उसको मार डालने का फैसला करते हैं। एक रात जब डेविन अपनी कार के साथ एक ब्रिज से गुजर रहा होता है तो उसके पीछे यही करप्ट बिजनेसमैन लग जाते हैं। ये लोग डेविन को एक छोटी सी लड़ाई का बहाना बनाकर रोक लेते हैं, फिर उसको मारने लगते हैं। डेविन उनसे लड़ने की कोशिश करता है मगर वो अकेला होता है और ये लोग 4-5। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार। एक रात जब डेविन अपनी नई कार लेकर जा रहा होता है तो उसके दुश्मन उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये लोग उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि वो अपना इन्वेंशन उनको दे दे, मगर डेविन इनकार कर देता है। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार हो जाता है। वो लोग उसको एक नदी में फेंक देते हैं और उसकी कार भी उसके साथ गिर जाती है। डेविन की मौत हो जाती है और उसका सपना अधूरा रह जाता है, मगर उसकी रूह इस दुनिया से जा नहीं पाती। उसका जुनून, उसका गुस्सा और उसका दुख उसकी रूह को शांत नहीं देता। डेविन की मौत के बाद उसका बेटा राज और उसकी माँ बहुत गम में डूब जाते हैं। राज बहुत उदास रहता है मगर उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके बाप के साथ क्या हुआ। वो समझता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन असल में ये एक प्लान्ड मर्डर था। कुछ साल गुजर जाते हैं। राज बड़ा हो जाता है और अपने बाप की यादों के साथ जीता है। एक दिन उसको एक पुरानी और टूटी फूटी कार मिलती है। ये कार काफी बुरी हालत में होती है मगर राज इसको रिपेयर करने का फैसला करता है। वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके इस गाड़ी को एक शानदार, मॉडर्न और पावरफुल स्पोर्ट्स कार बना देता है। लेकिन जो राज नहीं जानता था वो ये था कि ये सिर्फ एक आम कार नहीं थी, ये उसके बाप की रूह से जुड़ी हुई थी। एक रात जब राज सो रहा होता है तो ये कार खुद से चलना शुरू कर देती है।
یہ ایک ہانٹڈ کار بن چکی ہوتی ہے جس میں ڈیون کی روح سمجھ چکی ہوتی ہے. یہ کار صرف ایک وہیکل نہیں بلکہ ایک انصاف کی مشین بن چکی ہوتی ہے. اب اس کا صرف ایک مقصد ہے ان دشمنوں سے بدلہ لینا جنہوں نے ڈیون کو مارا تھا. ایک ایک کر کے ڈیون کی روح والی ٹارزان چار ان سب دشمنوں کو مارنے لگتی ہے. پہلے اینتھنی ڈیکوسٹا رات اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے جب ٹارزان کار اچانک اس کے سامنے آ جاتی ہے. یہ کار اس کا پیچھا کرتی ہے اور اینتھنی کو ایک ڈارے ڈلن ویل چائس سین میں الجھا دیتی ہے. آخر کار ٹارزان اینتھنی کی کار کو ایک پل سے ٹکرا دیتی ہے اور اس کی جگہانیہ موت ہو جاتی ہے. پھر مہیش سکسینہ ایک کلب میں انجوائے کر رہا ہوتا ہے جب ٹارزان کار کلب کے باہر آ کر اس کا انتظار کرتی ہے. جب مہیش اپنی کار میں بیٹھتا ہے تو ٹارزان اس کو گھسیٹ لے جاتی ہے اور ایک ہائی سپیڈ چیس کے بعد اس کو ایک ٹرک سے ٹکرا دیتی ہے. مہیش بھی مر جاتا ہے. کیلاش چوپڑا کو ٹارزان ایک فیکٹری میں پکڑتی ہے جہاں اس کو ایک ٹیریفائنگ طریقے سے زندہ جلا دیا جاتا ہے. پھر کھرانا کو ٹارزان ایک ابینڈنڈ ہائی وے پر پھنساتی ہے. اس کو ٹارزان ایک کلف سے گرا دیتی ہے جس سے اس کی ہارفائنگ موت ہو جاتی ہے. جب یہ قتل ہونے لگتے ہیں تو پولیس اور راج کے دوستوں کو شک ہونے لگتا ہے کہ یہ سب کون کر رہا ہے. راج کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ اس کی کار ایسے کیسے چل رہی ہے. آخر کار اس کو یہ راز پتہ چلتا ہے کہ اس کی کار میں اس کے باپ ڈیون کی روح ہے. ایک دن راکیش کپور راج کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے مگر ٹارزان کار آخر کار کپور کو بھی مار دیتی ہے. راج یہ دیکھ کر بہت ایموشنل ہو جاتا ہے کہ اس کے باپ نے بدلہ لے لیا مگر اب اس کو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ٹارزان کار کو آگے چلا کر رکھا نہیں جا سکتا کیونکہ اب اس کا کام ختم ہو چکا ہے. اس لیے راج ٹارزان کار کو ایک پانی کے اندر گرا دیتا ہے تاکہ اس کی روح میں ریسٹ کر سکے. فلم ایک ایموشنل نوٹ پر ختم ہوتی ہے جس میں راج کہتے ہیں پاپا اب آپ سکون میں ہیں, میں آپ کو کبھی نہ ہی بھولوں گا. کہانی کی شروعات ایک ٹیلنٹڈ اور آنےسٹ آٹوموبائل انجینئر ڈیون چودھری اجائے دیوگن سے ہوتی ہے. ڈیون ایک بہت ہوشیار اور محنتی انسان ہے جو اپنی ایک نئی اور ایڈوانس کار ڈیزائن کرتا ہے. یہ کر صرف ایک وہیکل نہیں بلکہ ایک ریولوشن ہے آٹوموبائل انڈسٹری میں. اس کی یہ انوینشن دنیا کے بڑے انڈسٹریلسٹس کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے لیکن کچھ لوگ اس کو چوری کرنا چاہتے ہیں. اس سے آگے کی سٹوری آپ کو میری کالیگ احمد حسن قطری بتائیں گے. ڈیون ایک سنگل فادر ہے جو اپنے بیٹے راج چودھری سے بہت پیار کرتا ہے. راج ایک شریف اور معصوم لڑکا ہے جو اپنی کالج لائف انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اس کے سپنے بڑے ہیں مگر اس کی دنیا صرف اس کے باپ ڈیون کے گرد گھومتی ہے. ڈیون چاہتا ہے کہ راج ایک بہترین فیوچر بنائے اور اس کو کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ڈیون اپنی نئی کار کا ڈیزائن لے کر ایک بڑی آٹوموبائل کمپنی کے مالک راکیش کپور کے پاس جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا ڈیزائن استعمال کیا جائے اور انڈسٹری میں ایک نئے دور کا آغاز ہو. مگر کپور اور اس کے کرپٹ بزنس پارٹنرز اینتھنی ڈیکوسٹا, مہیش سکسینہ, کیلاش چوپڑا اور کھرانا ڈیون کے ویژن کو صرف پیسہ بنانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ لوگ ڈیون کی انوینشن کو چرا کر اپنا نام دینا چاہتے ہیں. جب ڈیون ان لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا تو یہ لوگ ایک ષڈیانتر رچ کر اس کو مار ڈالنے کا فیصلہ کرتے ہیں. ایک رات جب ڈیون اپنی چار کے ساتھ ایک برج سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے یہی کرپٹ بزنس مین لگ جاتے ہیں. یہ لوگ ڈیون کو ایک چھوٹی سی لڑائی کا بہانہ بنا کر روک لیتے ہیں, پھر اس کو مارنے لگتے ہیں. ڈیون ان سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اکیلا ہوتا ہے اور یہ لوگ 4-5. آخر کار وہ بیچارہ ڈیون ایک خونی حملے کا شکار. ایک رات جب ڈیون اپنی نئی چار لے کر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے دشمن اس کا راستہ روک لیتے ہیں. یہ لوگ اس کو دم کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنا انوینشن ان کو دے دے مگر ڈیون انکاری کر دیتا ہے. آخر کار وہ بیچارہ ڈیون ایک خونی حملے کا شکار ہو جاتا ہے. وہ لوگ اس کو ایک ندی میں انفیکٹ دیتے ہیں اور اس کی چار بھی اس کے ساتھ گر جاتی ہے. ڈیون کی موت ہو جاتی ہے اور اس کا سپنا ادھورا رہ جاتا ہے مگر اس کی روح اس دنیا سے جا نہیں پاتی. اس کا جنون, اس کا غصہ اور اس کا دکھ اس کی روح کو شانت نہیں دیتا. ڈیون کی موت کے بعد اس کا بیٹا راج اور اس کی ماں بہت غم میں ڈوب جاتے ہیں. راج بہت اداس رہتا ہے مگر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس کے باپ کے ساتھ کیا ہوا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا لیکن اصل میں یہ ایک پلانڈ مرڈر تھا. کچھ سال گزر جاتے ہیں. راج بڑا ہو جاتا ہے اور اپنے باپ کی یادوں کے ساتھ جیتا ہے.
एक दिन उसको एक पुरानी और टूटी फूटी कार मिलती है। ये कार काफी बुरी हालत में होती है, मगर राज इसको रिपेयर करने का फैसला करता है। वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके इस गाड़ी को एक शानदार, मॉडर्न और पावरफुल स्पोर्ट्स कार बना देता है। लेकिन जो राज नहीं जानता था वो ये था कि ये सिर्फ एक आम कार नहीं थे, ये उसके बाप की रूह से जुड़ी हुई थी। एक रात जब राज सो रहा होता है तो ये कार खुद से चलना शुरू कर देती है। ये एक हॉन्टेड कार बन चुकी होती है जिसमें डेविन की रूह समझ चुकी होती है। ये कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक इंसाफ की मशीन बन चुकी होती है। अब इसका सिर्फ एक मकसद है उन दुश्मनों से बदला लेना जिन्होंने डेविन को मारा था। एक एक करके डेविन की रूह वाली टार्ज़न चार उन सब दुश्मनों को मारने लगती है। पहले एंथनी कोस्टा रात अपने घर जा रहा होता है जब टार्ज़न कार अचानक उसके सामने आ जाती है। ये कार उसका पीछा करती है और एंथनी को एक डरे डिलन चाइस सीन में उलझा देती है। आखिरकार टार्ज़न एंथनी की कार को एक पुल से टकरा देती है और उसकी जघन्य मौत हो जाती है। फिर महेश सक्सेना एक क्लब में एंजॉय कर रहा होता है जब टार्ज़न कार क्लब के बाहर आकर उसका इंतजार करती है। जब महेश अपनी कार में बैठता है तो टार्ज़न उसको घसीट ले जाती है और एक हाई स्पीड चेस के बाद उसको एक ट्रक से टकरा देती है। महेश भी मर जाता है। कैलाश चोपड़ा को टार्ज़न एक फैक्ट्री में पकड़ती है जहां उसको एक टेरिफाइंग तरीके से जिंदा जला दिया जाता है। फिर खुराना को टार्ज़न एक अबैंडन्ड हाईवे पर फंसाती है। उसको टार्ज़न एक क्लिफ से गिरा देती है जिससे उसकी हॉरिफाइंग मौत हो जाती है। जब ये कत्ल होने लगते हैं तो पुलिस और राज के दोस्तों को शक होने लगता है कि ये सब कौन कर रहा है। राज को भी समझ नहीं आता कि उसकी कार ऐसे कैसे चल रही है। आखिरकार उसको ये राज पता चलता है कि उसकी कार में उसके बाप डेविन की रूह है। एक दिन राकेश कपूर राज को फंसाने की कोशिश करता है मगर टार्ज़न कार आखिरकार कपूर को भी मार देती है। राज ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है कि उसके बाप ने बदला ले लिया, मगर अब उसको ये भी समझ आता है कि टार्ज़न कार को आगे चला कर रखा नहीं जा सकता क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है। इसलिए राज टार्ज़न कार को एक पानी के अंदर गिरा देता है ताकि उसकी रूह में रेस्ट कर सके। फिल्म एक इमोशनल नोट पर खत्म होती है जिसमें राज कहते हैं, पापा अब आप सुकून में हैं, मैं आपको कभी ना ही भूलूंगा। कहानी की शुरुआत एक टैलेंटेड और ऑनेस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर डेविन चौधरी अजय दिवगियन से होती है। डेविन एक बहुत होशियार और मेहनती इंसान है जो अपनी एक नई और एडवांस कार डिजाइन करता है। ये कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। उसकी ये इन्वेंशन दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए बहुत मुफीद हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसको चोरी करना चाहते हैं। इससे आगे की स्टोरी आपको मेरी कॉलीग अहमद हसन कतरी बताएंगे। डेविन एक सिंगल फादर है जो अपने बेटे राज चौधरी से बहुत प्यार करता है। राज एक शरीफ और मासूम लड़का है जो अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। उसके सपने बड़े हैं मगर उसकी दुनिया सिर्फ उसके बाप डेविन के गिर्द घूमती है। डेविन चाहता है कि राज एक बेहतरीन फ्यूचर बनाए और उसको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। डेविन अपनी नई कार का डिजाइन लेकर एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक राकेश कपूर के पास जाता है। वो चाहता है कि उसका डिजाइन इस्तेमाल किया जाए और इंडस्ट्री में एक नए दौर का आगाज हो। मगर कपूर और उसके करप्ट बिजनेस पार्टनर्स एंथनी डिकोस्टा, महेश सक्सेना, कैलाश चोपड़ा और खुराना डेविन के विजन को सिर्फ पैसा बनाने का जरिया समझते हैं। ये लोग डेविन की इन्वेंशन को चुरा कर अपना नाम देना चाहते हैं। जब डेविन इन लोगों के साथ डील नहीं करता तो ये लोग एक षड्यंत्र रच कर उसको मार डालने का फैसला करते हैं। एक रात जब डेविन अपनी कार के साथ एक ब्रिज से गुजर रहा होता है तो उसके पीछे यही करप्ट बिजनेसमैन लग जाते हैं। ये लोग डेविन को एक छोटी सी लड़ाई का बहाना बनाकर रोक लेते हैं, फिर उसको मारने लगते हैं। डेविन उनसे लड़ने की कोशिश करता है मगर वो अकेला होता है और ये लोग 4-5। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार। एक रात जब डेविन अपनी नई कार लेकर जा रहा होता है तो उसके दुश्मन उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये लोग उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि वो अपना इन्वेंशन उनको दे दे, मगर डेविन इनकार कर देता है। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार हो जाता है। वो लोग उसको एक नदी में फेंक देते हैं और उसकी कार भी उसके साथ गिर जाती है।
डेविन की मौत हो जाती है और उसका सपना अधूरा रह जाता है, मगर उसकी रूह इस दुनिया से जा नहीं पाती। उसका जुनून, उसका गुस्सा और उसका दुख उसकी रूह को शांत नहीं देता। डेविन की मौत के बाद उसका बेटा राज और उसकी माँ बहुत गम में डूब जाते हैं। राज बहुत उदास रहता है, मगर उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके बाप के साथ क्या हुआ। वो समझता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन असल में ये एक प्लान्ड मर्डर था। कुछ साल गुजार जाते हैं, राज बड़ा हो जाता है और अपने बाप की यादों के साथ जीता है। एक दिन उसको एक पुरानी और टूटी फूटी कार मिलती है। ये कार काफी बुरी हालत में होती है, मगर राज इसको रिपेयर करने का फैसला करता है। वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके इस गाड़ी को एक शानदार, मॉडर्न और पावरफुल स्पोर्ट्स कार बना देता है। लेकिन जो राज नहीं जानता था वो ये था कि ये सिर्फ एक आम कार नहीं थे, ये उसके बाप की रूह से जुड़ी हुई थी। एक रात जब राज सो रहा होता है तो ये कार खुद से चलना शुरू कर देती है। ये एक हॉन्टेड कार बन चुकी होती है जिसमें डेविन की रूह समझ चुकी होती है। ये कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक इंसाफ की मशीन बन चुकी होती है। अब इसका सिर्फ एक मकसद है, उन दुश्मनों से बदला लेना जिन्होंने डेविन को मारा था। एक एक करके डेविन की रूह वाली टार्ज़न चार उन सब दुश्मनों को मारने लगती है। पहले एंथनी कोस्टा रात अपने घर जा रहा होता है जब टार्ज़न कार अचानक उसके सामने आ जाती है। ये कार उसका पीछा करती है और एंथनी को एक डरे डिलनवेल चाइस सीन में उलझा देती है। आखिरकार टार्ज़न एंथनी की कार को एक पुल से टकरा देती है और उसकी जघन्य मौत हो जाती है। फिर महेश सक्सेना एक क्लब में एंजॉय कर रहा होता है जब टार्ज़न कार क्लब के बाहर आकर उसका इंतजार करती है। जब महेश अपनी कार में बैठता है तो टार्ज़न उसको घसीट ले जाती है और एक हाई स्पीड चेस के बाद उसको एक ट्रक से टकरा देती है। महेश भी मर जाता है। कैलाश चोपड़ा को टार्ज़न एक फैक्ट्री में पकड़ती है जहां उसको एक टेरिफाइंग तरीके से जिंदा जला दिया जाता है। फिर खुराना को टार्ज़न एक अबैंडन्ड हाईवे पर फंसाती है। उसको टार्ज़न एक क्लिफ से गिरा देती है जिससे उसकी हॉरिफाइंग मौत हो जाती है। जब ये कत्ल होने लगते हैं तो पुलिस और राज के दोस्तों को शक होने लगता है कि ये सब कौन कर रहा है। राज को भी समझ नहीं आता कि उसकी कार ऐसे कैसे चल रही है। आखिरकार उसको ये राज पता चलता है कि उसकी कार में उसके बाप डेविन की रूह है। एक दिन राकेश कपूर राज को फंसाने की कोशिश करता है, मगर टार्ज़न कार आखिरकार कपूर को भी मार देती है। राज ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है कि उसके बाप ने बदला ले लिया, मगर अब उसको ये भी समझ आता है कि टार्ज़न कार को आगे चला कर रखा नहीं जा सकता क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है। इसलिए राज टार्ज़न कार को एक पानी के अंदर गिरा देता है ताकि उसकी रूह में रेस्ट कर सके। फिल्म एक इमोशनल नोट पर खत्म होती है जिसमें राज कहते हैं, पापा अब आप सुकून में हैं, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। कहानी की शुरुआत एक टैलेंटेड और ऑनेस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर डेविन चौधरी अजय दिवगियन से होती है। डेविन एक बहुत होशियार और मेहनती इंसान है जो अपनी एक नई और एडवांस कार डिजाइन करता है। ये कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। उसकी ये इन्वेंशन दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए बहुत मुफीद हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसको चोरी करना चाहते हैं। इससे आगे की स्टोरी आपको मेरी कॉलीग अहमद हसन कतरी बताएंगे। डेविन एक सिंगल फादर है जो अपने बेटे राज चौधरी से बहुत प्यार करता है। राज एक शरीफ और मासूम लड़का है जो अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। उसके सपने बड़े हैं, मगर उसकी दुनिया सिर्फ उसके बाप डेविन के गिर्द घूमती है। डेविन चाहता है कि राज एक बेहतरीन फ्यूचर बनाए और उसको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। डेविन अपनी नई कार का डिजाइन लेकर एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक राकेश कपूर के पास जाता है। वो चाहता है कि उसका डिजाइन इस्तेमाल किया जाए और इंडस्ट्री में एक नए दौर का आगाज हो, मगर कपूर और उसके करप्ट बिजनेस पार्टनर्स एंथनी डिकोस्टा, महेश सक्सेना, कैलाश चोपड़ा और खुराना डेविन के विजन को सिर्फ पैसा बनाने का जरिया समझते हैं। ये लोग डेविन की इन्वेंशन को चुरा कर अपना नाम देना चाहते हैं। जब डेविन इन लोगों के साथ डील नहीं करता तो ये लोग एक षड्यंत्र रच कर उसको मार डालने का फैसला करते हैं। एक रात जब डेविन अपनी कार के साथ एक ब्रिज से गुजर रहा होता है तो उसके पीछे यही करप्ट बिजनेसमैन लग जाते हैं। ये लोग डेविन को एक छोटी सी लड़ाई का बहाना बनाकर रोक लेते हैं, फिर उसको मारने लगते हैं। डेविन उनसे लड़ने की कोशिश करता है मगर वो अकेला होता है और ये लोग 4-5।
आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार। एक रात जब डेविन अपनी नाई झाड़ लेकर जा रहा होता है तो उसके दुश्मन उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये लोग उसको दम करने लगते हैं और कहते हैं कि वो अपना इन्वेंशन उनको दे दे, मगर डेविन इनकारी कर देता है। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार हो जाता है। वो लोग उसको एक नदी में फेंक देते हैं और उसकी झाड़ भी उसके साथ गिर जाती है। डेविन की मौत हो जाती है और उसका सपना अधूरा रह जाता है, मगर उसकी रूह इस दुनिया से जा नहीं पाती। उसका जुनून, उसका गुस्सा और उसका दुख उसकी रूह को शांत नहीं देता। डेविन की मौत के बाद उसका बेटा राज और उसकी माँ बहुत गम में डूब जाते हैं। राज बहुत उदास रहता है, मगर उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके बाप के साथ क्या हुआ। वो समझता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन असल में ये एक प्लान्ड मर्डर था। कुछ साल गुजार जाते हैं। राज बड़ा हो जाता है और अपने बाप की यादों के साथ जीता है। एक दिन उसको एक पुरानी और टूटी फूटी कार मिलती है। ये कार काफी बुरी हालत में होती है, मगर राज इसको रिपेयर करने का फैसला करता है। वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके इस गाड़ी को एक शानदार, मॉडर्न और पावरफुल स्पोर्ट्स कार बना देता है। लेकिन जो राज नहीं जानता था वो ये था कि ये सिर्फ एक आम कार नहीं थी, ये उसके बाप की रूह से जुड़ी हुई थी। एक रात जब राज सो रहा होता है तो ये कार खुद से चलना शुरू कर देती है। ये एक हॉन्टेड कार बन चुकी होती है जिसमें डेविन की रूह समझ चुकी होती है। ये कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक इंसाफ की मशीन बन चुकी होती है। अब इसका सिर्फ एक मकसद है, उन दुश्मनों से बदला लेना जिन्होंने डेविन को मारा था। एक एक करके डेविन की रूह वाली टार्ज़न चार उन सब दुश्मनों को मारने लगती है। पहले एंथनी कोस्टा रात अपने घर जा रहा होता है जब टार्ज़न कार अचानक उसके सामने आ जाती है। ये कार उसका पीछा करती है और एंथनी को एक डरे डिलन चाइस सीन में उलझा देती है। आखिरकार टार्ज़न एंथनी की कार को एक पुल से टकरा देती है और उसकी जघन्य मौत हो जाती है। फिर महेश सक्सेना एक क्लब में एंजॉय कर रहा होता है जब टार्ज़न कार क्लब के बाहर आकर उसका इंतजार करती है। जब महेश अपनी कार में बैठता है तो टार्ज़न उसको घसीट ले जाती है और एक हाई स्पीड चेस के बाद उसको एक ट्रक से टकरा देती है। महेश भी मर जाता है। कैलाश चोपड़ा को टार्ज़न एक फैक्ट्री में पकड़ती है जहां उसको एक टेरिफाइंग तरीके से जिंदा जला दिया जाता है। फिर खुराना को टार्ज़न एक अबैंडन्ड हाईवे पर फंसाती है। उसको टार्ज़न एक क्लिफ से गिरा देती है जिससे उसकी हॉरिफाइंग मौत हो जाती है। जब ये कत्ल होने लगते हैं तो पुलिस और राज के दोस्तों को शक होने लगता है कि ये सब कौन कर रहा है। राज को भी समझ नहीं आता कि उसकी कार ऐसे कैसे चल रही है। आखिरकार उसको ये राज पता चलता है कि उसकी कार में उसके बाप डेविन की रूह है। एक दिन राकेश कपूर राज को फंसाने की कोशिश करता है, मगर टार्ज़न कार आखिरकार कपूर को भी मार देती है। राज ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है कि उसके बाप ने बदला ले लिया, मगर अब उसको ये भी समझ आता है कि टार्ज़न कार को आगे चला कर रखा नहीं जा सकता क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है। इसलिए राज टार्ज़न कार को एक पानी के अंदर गिरा देता है ताकि उसकी रूह में रेस्ट कर सके। फिल्म एक इमोशनल नोट पर खत्म होती है जिसमें राज कहते हैं, पापा अब आप सुकून में हैं, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। कहानी की शुरुआत एक टैलेंटेड और ऑनेस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर डेविन चौधरी अजय देवगन से होती है। डेविन एक बहुत होशियार और मेहनती इंसान है जो अपनी एक नई और एडवांस कार डिजाइन करता है। ये कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। उसकी ये इन्वेंशन दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए बहुत मुफीद हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसको चोरी करना चाहते हैं। इससे आगे की स्टोरी आपको मेरी कॉलीग अहमद हसन कतरी बताएंगे। डेविन एक सिंगल फादर है जो अपने बेटे राज चौधरी से बहुत प्यार करता है। राज एक शरीफ और मासूम लड़का है जो अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। उसके सपने बड़े हैं, मगर उसकी दुनिया सिर्फ उसके बाप डेविन के गिर्द घूमती है। डेविन चाहता है कि राज एक बेहतरीन फ्यूचर बनाए और उसको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। डेविन अपनी नई कार का डिजाइन लेकर एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक राकेश कपूर के पास जाता है। वो चाहता है कि उसका डिजाइन इस्तेमाल किया जाए और इंडस्ट्री में एक नए दौर का आगाज हो, मगर कपूर और उसके करप्ट बिजनेस पार्टनर्स एंथनी डिकोस्टा, महेश सक्सेना, कैलाश चोपड़ा और खुराना डेविन के विजन को सिर्फ पैसा बनाने का जरिया समझते हैं।
ये लोग डेविन की इन्वेंशन को चुरा कर अपना नाम देना चाहते हैं। जब डेविन इन लोगों के साथ डील नहीं करता तो ये लोग एक षड्यंत्र रच कर उसको मार डालने का फैसला करते हैं। एक रात जब डेविन अपनी कार के साथ एक ब्रिज से गुजर रहा होता है तो उसके पीछे यही करप्ट बिजनेसमैन लग जाते हैं। ये लोग डेविन को एक छोटी सी लड़ाई का बहाना बनाकर रोक लेते हैं, फिर उसको मारने लगते हैं। डेविन उनसे लड़ने की कोशिश करता है मगर वो अकेला होता है और ये लोग 4-5। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार। एक रात जब डेविन अपनी नई कार लेकर जा रहा होता है तो उसके दुश्मन उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये लोग उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि वो अपना इन्वेंशन उनको दे दे, मगर डेविन इनकार कर देता है। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार हो जाता है। वो लोग उसको एक नदी में फेंक देते हैं और उसकी चाबी उसके साथ गिर जाती है। डेविन की मौत हो जाती है और उसका सपना अधूरा रह जाता है, मगर उसकी रूह इस दुनिया से जा नहीं पाती। उसका जुनून, उसका गुस्सा और उसका दुख उसकी रूह को शांत नहीं देता। डेविन की मौत के बाद उसका बेटा राज और उसकी माँ बहुत गम में डूब जाते हैं। राज बहुत उदास रहता है मगर उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके बाप के साथ क्या हुआ। वो समझता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन असल में ये एक प्लान्ड मर्डर था। कुछ साल गुजर जाते हैं, राज बड़ा हो जाता है और अपने बाप की यादों के साथ जीता है। एक दिन उसको एक पुरानी और टूटी फूटी कार मिलती है। ये कार काफी बुरी हालत में होती है मगर राज इसको रिपेयर करने का फैसला करता है। वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके इस गाड़ी को एक शानदार, मॉडर्न और पावरफुल स्पोर्ट्स कार बना देता है। लेकिन जो राज नहीं जानता था वो ये था कि ये सिर्फ एक आम कार नहीं थी, ये उसके बाप की रूह से जुड़ी हुई थी। एक रात जब राज सो रहा होता है तो ये कार खुद से चलना शुरू कर देती है। ये एक हॉन्टेड कार बन चुकी होती है जिसमें डेविन की रूह समझ चुकी होती है। ये कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक इंसाफ की मशीन बन चुकी होती है। अब इसका सिर्फ एक मकसद है, उन दुश्मनों से बदला लेना जिन्होंने डेविन को मारा था। एक एक करके डेविन की रूह वाली टार्ज़न चार उन सब दुश्मनों को मारने लगती है। पहले एंथनी कोस्टा रात अपने घर जा रहा होता है जब टार्ज़न कार अचानक उसके सामने आ जाती है। ये कार उसका पीछा करती है और एंथनी को एक डरे डिलन चाइस सीन में उलझा देती है। आखिरकार टार्ज़न एंथनी की कार को एक पुल से टकरा देती है और उसकी जघन्य मौत हो जाती है। फिर महेश सक्सेना एक क्लब में एंजॉय कर रहा होता है जब टार्ज़न कार क्लब के बाहर आकर उसका इंतजार करती है। जब महेश अपनी कार में बैठता है तो टार्ज़न उसको घसीट ले जाती है और एक हाई स्पीड चेस के बाद उसको एक ट्रक से टकरा देती है। महेश भी मर जाता है। कैलाश चोपड़ा को टार्ज़न एक फैक्ट्री में पकड़ती है जहां उसको एक टेरिफाइंग तरीके से जिंदा जला दिया जाता है। फिर खुराना को टार्ज़न एक अबैंडन्ड हाईवे पर फंसाती है। उसको टार्ज़न एक क्लिफ से गिरा देती है जिससे उसकी हॉरिफाइंग मौत हो जाती है। जब ये कत्ल होने लगते हैं तो पुलिस और राज के दोस्तों को शक होने लगता है कि ये सब कौन कर रहा है। राज को भी समझ नहीं आता कि उसकी कार ऐसे कैसे चल रही है। आखिरकार उसको ये राज पता चलता है कि उसकी कार में उसके बाप डेविन की रूह है। एक दिन राकेश कपूर राज को फंसाने की कोशिश करता है मगर टार्ज़न कार आखिरकार कपूर को भी मार देती है। राज ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है कि उसके बाप ने बदला ले लिया, मगर अब उसको ये भी समझ आता है कि टार्ज़न कार को आगे चला कर रखा नहीं जा सकता क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है। इसलिए राज टार्ज़न कार को एक पानी के अंदर गिरा देता है ताकि उसकी रूह में रेस्ट कर सके। फिल्म एक इमोशनल नोट पर खत्म होती है जिसमें राज कहते हैं, पापा अब आप सुकून में हैं, मैं आपको कभी ना ही भूलूंगा। कहानी की शुरुआत एक टैलेंटेड और ऑनेस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर डेविन चौधरी अजय दिवगियन से होती है। डेविन एक बहुत होशियार और मेहनती इंसान है जो अपनी एक नई और एडवांस कार डिजाइन करता है। ये कर सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। उसकी ये इन्वेंशन दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए बहुत मुफीद हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसको चोरी करना चाहते हैं। इससे आगे की स्टोरी आपको मेरी कॉलीग अहमद हसन कतरी बताएंगे। डेविन एक सिंगल फादर है जो अपने बेटे राज चौधरी से बहुत प्यार करता है। राज एक शरीफ और मासूम लड़का है जो अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा होता है।
اس کے سپنے بادے ہیں مگر اس کی دنیا صرف اس کے باپ ڈیون کے گرد گھومتی ہے. ڈیون چاہتا ہے کہ راج ایک بہترین فیوچر بنائے اور اس کو کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ڈیون اپنی نئی کار کا ڈیزائن لے کر ایک بڑی آٹوموبائل کمپنی کے مالک راکیش کپور کے پاس جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا ڈیزائن استعمال کیا جائے اور انڈسٹری میں ایک نئے دور کا آغاز ہو. مگر کپور اور اس کے کرپٹ بزنس پارٹنرز اینتھنی ڈی کوسٹا، مہیش سکسینہ، کیلاش چوپڑا اور کھرانا ڈیون کے ویژن کو صرف پیسہ بنانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ لوگ ڈیون کی انوینشن کو چرا کر اپنا نام دینا چاہتے ہیں. جب ڈیون ان لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا تو یہ لوگ ایک شڈینتر رچ کر اس کو مار ڈالنے کا فیصلہ کرتے ہیں. ایک رات جب ڈیون اپنی کار کے ساتھ ایک برج سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے یہی کرپٹ بزنس مین لگ جاتے ہیں. یہ لوگ ڈیون کو ایک چھوٹی سی لڑائی کا بہانہ بنا کر روک لیتے ہیں، پھر اس کو مارنے لگتے ہیں. ڈیون ان سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اکیلا ہوتا ہے اور یہ لوگ 4-5. آخر کار وہ بیچارہ ڈیون ایک خونی حملے کا شکار. ایک رات جب ڈیون اپنی نئی کار لے کر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے دشمن اس کا راستہ روک لیتے ہیں. یہ لوگ اس کو دھمکانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنا انوینشن ان کو دے دے مگر ڈیون انکاری کر دیتا ہے. آخر کار وہ بیچارہ ڈیون ایک خونی حملے کا شکار ہو جاتا ہے. وہ لوگ اس کو ایک ندی میں انفیکٹ دیتے ہیں اور اس کی چربی اس کے ساتھ گر جاتی ہے. ڈیون کی موت ہو جاتی ہے اور اس کا سپنا ادھورا رہ جاتا ہے مگر اس کی روح اس دنیا سے جا نہیں پاتی. اس کا جنون، اس کا غصہ اور اس کا دکھ اس کی روح کو شانت نہیں دیتا. ڈیون کی موت کے بعد اس کا بیٹا راج اور اس کی ماں بہت غم میں ڈوب جاتے ہیں. راج بہت اداس رہتا ہے مگر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس کے باپ کے ساتھ کیا ہوا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا لیکن اصل میں یہ ایک پلانڈ مرڈر تھا. کچھ سال گزر جاتے ہیں. راج بڑا ہو جاتا ہے اور اپنے باپ کی یادوں کے ساتھ جیتا ہے. ایک دن اس کو ایک پرانی اور ٹوٹی پھوٹی کار ملتی ہے. یہ کار کافی بری حالت میں ہوتی ہے مگر راج اس کو ریپیئر کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. وہ اپنی سکلز کا استعمال کر کے اس گاڑی کو ایک شاندار، ماڈرن اور پاورفل سپورٹس کار بنا دیتا ہے. لیکن جو راج نہیں جانتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ صرف ایک عام کار نہیں تھی، یہ اس کے باپ کی روح سے جڑی ہوئی تھی. ایک رات جب راج سو رہا ہوتا ہے تو یہ کار خود سے چلنا شروع کر دیتی ہے. یہ ایک ہانٹڈ کار بن چکی ہوتی ہے جس میں ڈیون کی روح سمجھ چکی ہوتی ہے. یہ کار صرف ایک وہیکل نہیں بلکہ ایک انصاف کی مشین بن چکی ہوتی ہے. اب اس کا صرف ایک مقصد ہے ان دشمنوں سے بدلہ لینا جنہوں نے ڈیون کو مارا تھا. ایک ایک کر کے ڈیون کی روح والی ٹارزان چار ان سب دشمنوں کو مارنے لگتی ہے. پہلے اینتھنی کوسٹا رات اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے جب ٹارزان کار اچانک اس کے سامنے آ جاتی ہے. یہ کار اس کا پیچھا کرتی ہے اور اینتھنی کو ایک ڈارے ڈیلن چائس سین میں الجھا دیتی ہے. آخر کار ٹارزان اینتھنی کی کار کو ایک پل سے ٹکرا دیتی ہے اور اس کی جگہ موت ہو جاتی ہے. پھر مہیش سکسینہ ایک کلب میں انجوائے کر رہا ہوتا ہے جب ٹارزان کار کلب کے باہر آ کر اس کا انتظار کرتی ہے. جب مہیش اپنی کار میں بیٹھتا ہے تو ٹارزان اس کو گھسیٹ لے جاتی ہے اور ایک ہائی سپیڈ چیس کے بعد اس کو ایک ٹرک سے ٹکرا دیتی ہے. مہیش بھی مر جاتا ہے. کیلاش چوپڑا کو ٹارزان ایک فیکٹری میں پکڑتی ہے جہاں اس کو ایک ٹیریفائنگ طریقے سے زندہ جلا دیا جاتا ہے. پھر کھرانا کو ٹارزان ایک ابینڈنڈ ہائی وے پر پھنساتی ہے. اس کو ٹارزان ایک کلف سے گرا دیتی ہے جس سے اس کی ہارفائنگ موت ہو جاتی ہے. جب یہ قتل ہونے لگتے ہیں تو پولیس اور راج کے دوستوں کو شک ہونے لگتا ہے کہ یہ سب کون کر رہا ہے. راج کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ اس کی کار ایسے کیسے چل رہی ہے. آخر کار اس کو یہ راز پتہ چلتا ہے کہ اس کی کار میں اس کے باپ ڈیون کی روح ہے. ایک دن راکیش کپور راج کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے مگر ٹارزان کار آخر کار کپور کو بھی مار دیتی ہے. راج یہ دیکھ کر بہت ایموشنل ہو جاتا ہے کہ اس کے باپ نے بدلہ لے لیا مگر اب اس کو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ٹارزان کار کو آگے چلا کر رکھا نہیں جا سکتا کیونکہ اب اس کا کام ختم ہو چکا ہے. اس لیے راج ٹارزان کار کو ایک پانی کے اندر گرا دیتا ہے تاکہ اس کی روح میں ریسٹ کر سکے. فلم ایک ایموشنل نوٹ پر ختم ہوتی ہے جس میں راج کہتے ہیں پاپا اب آپ سکون میں ہیں، میں آپ کو کبھی نہ ہی بھولوں گا. کہانی کی شروعات ایک ٹیلنٹڈ اور آنےسٹ آٹوموبائل انجینئر ڈیون چودھری اجائے دیوگن سے ہوتی ہے. ڈیون ایک بہت ہوشیار اور محنتی انسان ہے جو اپنی ایک نئی اور ایڈوانس کار ڈیزائن کرتا ہے.
یہ کر صرف ایک وہیکل نہیں بلکہ ایک ریولوشن ہے آٹوموبیلی انڈسٹری میں۔ اس کی یہ انوینشن دنیا کے بڑے انڈسٹریلسٹس کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو چوری کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے آگے کی سٹوری آپ کو میری کالیگ احمد حسن قطری بتائیں گے۔ ڈیون ایک سنگل فادر ہے جو اپنے بیٹے راج چودھری سے بہت پیار کرتا ہے۔ راج ایک شریف اور معصوم لڑکا ہے جو اپنی کالج لائف انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے سپنے بڑے ہیں مگر اس کی دنیا صرف اس کے باپ ڈیون کے گرد گھومتی ہے۔ ڈیون چاہتا ہے کہ راج ایک بہترین فیوچر بنائے اور اس کو کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈیون اپنی نئی کار کا ڈیزائن لے کر ایک بڑی آٹوموبائل کمپنی کے مالک راکیش کپور کے پاس جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا ڈیزائن استعمال کیا جائے اور انڈسٹری میں ایک نئے دور کا آغاز ہو، مگر کپور اور اس کے کرپٹ بزنس پارٹنرز اینتھنی ڈی کوسٹا، مہیش سکسینہ، کیلاش چوپڑا اور کھرانا ڈیون کے ویژن کو صرف پیسہ بنانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ ڈیون کی انوینشن کو چرا کر اپنا نام دینا چاہتے ہیں۔ جب ڈیون ان لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا تو یہ لوگ ایک شڈینتر رچ کر اس کو مار ڈالنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک رات جب ڈیون اپنی کار کے ساتھ ایک برج سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے یہی کرپٹ بزنس مین لگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ڈیون کو ایک چھوٹی سی لڑائی کا بہانہ بنا کر روک لیتے ہیں، پھر اس کو مارنے لگتے ہیں۔ ڈیون ان سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اکیلا ہوتا ہے اور یہ لوگ 4-5۔ آخر کار وہ بیچارہ ڈیون ایک خونی حملے کا شکار۔ ایک رات جب ڈیون اپنی نئی کار لے کر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے دشمن اس کا راستہ روک لیتے ہیں۔ یہ لوگ اس کو دھمکانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنا انوینشن ان کو دے دے، مگر ڈیون انکاری کر دیتا ہے۔ آخر کار وہ بیچارہ ڈیون ایک خونی حملے کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اس کو ایک ندی میں انفیکٹ دیتے ہیں اور اس کی چربی اس کے ساتھ گر جاتی ہے۔ ڈیون کی موت ہو جاتی ہے اور اس کا سپنا ادھورا رہ جاتا ہے، مگر اس کی روح اس دنیا سے جا نہیں پاتی۔ اس کا جنون، اس کا غصہ اور اس کا دکھ اس کی روح کو شانت نہیں دیتا۔ ڈیون کی موت کے بعد اس کا بیٹا راج اور اس کی ماں بہت غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ راج بہت اداس رہتا ہے مگر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس کے باپ کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا لیکن اصل میں یہ ایک پلانڈ مرڈر تھا۔ کچھ سال گزر جاتے ہیں، راج بڑا ہو جاتا ہے اور اپنے باپ کی یادوں کے ساتھ جیتا ہے۔ ایک دن اس کو ایک پرانی اور ٹوٹی پھوٹی کار ملتی ہے۔ یہ کار کافی بری حالت میں ہوتی ہے مگر راج اس کو ریپیئر کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنی سکلز کا استعمال کر کے اس گاڑی کو ایک شاندار، ماڈرن اور پاورفل سپورٹس کار بنا دیتا ہے۔ لیکن جو راج نہیں جانتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ صرف ایک عام کار نہیں تھی، یہ اس کے باپ کی روح سے جڑی ہوئی تھی۔ ایک رات جب راج سو رہا ہوتا ہے تو یہ کار خود سے چلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ایک ہانٹڈ کار بن چکی ہوتی ہے جس میں ڈیون کی روح سمجھ چکی ہوتی ہے۔ یہ کار صرف ایک وہیکل نہیں بلکہ ایک انصاف کی مشین بن چکی ہوتی ہے۔ اب اس کا صرف ایک مقصد ہے ان دشمنوں سے بدلہ لینا جنہوں نے ڈیون کو مارا تھا۔ ایک ایک کر کے ڈیون کی روح والی ٹارزان چار ان سب دشمنوں کو مارنے لگتی ہے۔ پہلے اینتھنی کوسٹا رات اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے جب ٹارزان کار اچانک اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ کار اس کا پیچھا کرتی ہے اور اینتھنی کو ایک ڈیرے ڈیلن چیس سین میں الجھا دیتی ہے۔ آخر کار ٹارزان اینتھنی کی کار کو ایک پل سے ٹکرا دیتی ہے اور اس کی جگہ موت ہو جاتی ہے۔ پھر مہیش سکسینہ ایک کلب میں انجوائے کر رہا ہوتا ہے جب ٹارزان کار کلب کے باہر آ کر اس کا انتظار کرتی ہے۔ جب مہیش اپنی کار میں بیٹھتا ہے تو ٹارزان اس کو گھسیٹ لے جاتی ہے اور ایک ہائی سپیڈ چیس کے بعد اس کو ایک ٹرک سے ٹکرا دیتی ہے۔ مہیش بھی مر جاتا ہے۔ کیلاش چوپڑا کو ٹارزان ایک فیکٹری میں پکڑتی ہے جہاں اس کو ایک ٹیریفائنگ طریقے سے زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ پھر کھرانا کو ٹارزان ایک ابینڈنڈ ہائی وے پر پھنساتی ہے۔ اس کو ٹارزان ایک کلف سے گرا دیتی ہے جس سے اس کی ہارفائنگ موت ہو جاتی ہے۔ جب یہ قتل ہونے لگتے ہیں تو پولیس اور راج کے دوستوں کو شک ہونے لگتا ہے کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ راج کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ اس کی کار ایسے کیسے چل رہی ہے۔ آخر کار اس کو یہ راز پتہ چلتا ہے کہ اس کی کار میں اس کے باپ ڈیون کی روح ہے۔ ایک دن راکیش کپور راج کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے مگر ٹارزان کار آخر کار کپور کو بھی مار دیتی ہے۔ راج یہ دیکھ کر بہت ایموشنل ہو جاتا ہے کہ اس کے باپ نے بدلہ لے لیا
मगर अब उसको ये भी समझ आता है कि टार्जन कार को आगे चला कर रखा नहीं जा सकता, क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है। इसलिए राज टार्जन कार को एक पानी के अंदर गिरा देता है ताकि उसकी रूह में रेस्ट कर सके। फिल्म एक इमोशनल नोट पर खत्म होती है जिसमें राज कहते हैं, पापा अब आप सुकून में हैं, मैं आपको कभी ना ही भूलूंगा। कहानी की शुरुआत एक टैलेंटेड और ऑनेस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर देवेन चौधरी अजय दिवगन से होती है। देवेन एक बहुत होशियार और मेहनती इंसान है जो अपनी एक नई और एडवांस कार डिजाइन करता है। ये कर सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। उसकी ये इन्वेंशन दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए बहुत मुफीद हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसको चोरी करना चाहते हैं। इससे आगे की स्टोरी आपको मेरी कॉलीग अहमद हसन कतरी बताएंगे। डेविन एक सिंगल फादर है जो अपने बेटे राज चौधरी से बहुत प्यार करता है। राज एक शरीफ और मासूम लड़का है जो अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। उसके सपने बड़े हैं मगर उसकी दुनिया सिर्फ उसके बाप डेविन के गिर्द घूमती है। डेविन चाहता है कि राज एक बेहतरीन फ्यूचर बनाए और उसको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। डेविन अपनी नई कार का डिजाइन लेकर एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक राकेश कपूर के पास जाता है। वो चाहता है कि उसका डिजाइन इस्तेमाल किया जाए और इंडस्ट्री में एक नए दौर का आगाज हो। मगर कपूर और उसके करप्ट बिजनेस पार्टनर्स एंथनी डिकोस्टा, महेश सक्सेना, कैलाश चोपड़ा और खुराना डेविन के विजन को सिर्फ पैसा बनाने का जरिया समझते हैं। ये लोग डेविन की इन्वेंशन को चुरा कर अपना नाम देना चाहते हैं। जब डेविन इन लोगों के साथ डील नहीं करता तो ये लोग एक षड्यंत्र रच कर उसको मार डालने का फैसला करते हैं। एक रात जब डेविन अपनी कार के साथ एक ब्रिज से गुजर रहा होता है तो उसके पीछे यही करप्ट बिजनेसमैन लग जाते हैं। ये लोग डेविन को एक छोटी सी लड़ाई का बहाना बनाकर रोक लेते हैं, फिर उसको मारने लगते हैं। डेविन उनसे लड़ने की कोशिश करता है मगर वो अकेला होता है और ये लोग 4-5। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार। एक रात जब डेविन अपनी नई कार लेकर जा रहा होता है तो उसके दुश्मन उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये लोग उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि वो अपना इन्वेंशन उनको दे दे, मगर डेविन इनकार कर देता है। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार हो जाता है। वो लोग उसको एक नदी में फेंक देते हैं और उसकी कार भी उसके साथ गिर जाती है। डेविन की मौत हो जाती है और उसका सपना अधूरा रह जाता है, मगर उसकी रूह इस दुनिया से जा नहीं पाती। उसका जुनून, उसका गुस्सा और उसका दुख उसकी रूह को शांत नहीं देता। डेविन की मौत के बाद उसका बेटा राज और उसकी माँ बहुत गम में डूब जाते हैं। राज बहुत उदास रहता है मगर उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके बाप के साथ क्या हुआ। वो समझता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन असल में ये एक प्लान्ड मर्डर था। कुछ साल गुजर जाते हैं, राज बड़ा हो जाता है और अपने बाप की यादों के साथ जीता है। एक दिन उसको एक पुरानी और टूटी फूटी कार मिलती है। ये कार काफी बुरी हालत में होती है मगर राज इसको रिपेयर करने का फैसला करता है। वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके इस गाड़ी को एक शानदार, मॉडर्न और पावरफुल स्पोर्ट्स कार बना देता है। लेकिन जो राज नहीं जानता था वो ये था कि ये सिर्फ एक आम कार नहीं थी, ये उसके बाप की रूह से जुड़ी हुई थी। एक रात जब राज सो रहा होता है तो ये कार खुद से चलना शुरू कर देती है। ये एक हॉन्टेड कार बन चुकी होती है जिसमें डेविन की रूह समझ चुकी होती है। ये कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक इंसाफ की मशीन बन चुकी होती है। अब इसका सिर्फ एक मकसद है, उन दुश्मनों से बदला लेना जिन्होंने डेविन को मारा था। एक एक करके डेविन की रूह वाली टार्जन कार उन सब दुश्मनों को मारने लगती है। पहले एंथनी डिकोस्टा रात अपने घर जा रहा होता है जब टार्जन कार अचानक उसके सामने आ जाती है। ये कार उसका पीछा करती है और एंथनी को एक डायरेक्ट डिलन चाइस सीन में उलझा देती है। आखिरकार टार्जन एंथनी की कार को एक पुल से टकरा देती है और उसकी जगह मौत हो जाती है। फिर महेश सक्सेना एक क्लब में एंजॉय कर रहा होता है जब टार्जन कार क्लब के बाहर आकर उसका इंतजार करती है। जब महेश अपनी कार में बैठता है तो टार्जन उसको घसीट ले जाती है और एक हाई स्पीड चेस के बाद उसको एक ट्रक से टकरा देती है। महेश भी मर जाता है। कैलाश चोपड़ा को टार्जन एक फैक्ट्री में पकड़ती है जहां उसको एक टेरिफाइंग तरीके से जिंदा जला दिया जाता है। फिर खुराना को टार्जन एक अबैंडन्ड हाईवे पर फंसाती है। उसको टार्जन एक क्लिफ से गिरा देती है
जिससे उसकी हॉरिफाइंग मौत हो जाती है। जब ये कत्ल होने लगते हैं तो पुलिस और राज के दोस्तों को शक होने लगता है कि ये सब कौन कर रहा है। राज को भी समझ नहीं आता कि उसकी कार ऐसे कैसे चल रही है। आखिरकार उसको ये राज पता चलता है कि उसकी कार में उसके बाप डेविन की रूह है। एक दिन राकेश कपूर राज को फंसाने की कोशिश करता है, मगर टार्जन कार आखिरकार कपूर को भी मार देती है। राज ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है कि उसके बाप ने बदला ले लिया, मगर अब उसको ये भी समझ आता है कि टार्जन कार को आगे चला कर रखा नहीं जा सकता, क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है। इसलिए राज टार्जन कार को एक पानी के अंदर गिरा देता है ताकि उसकी रूह में रेस्ट कर सके। फिल्म एक इमोशनल नोट पर खत्म होती है, जिसमें राज कहते हैं, पापा अब आप सुकून में हैं, मैं आपको कभी ना ही भूलूंगा। कहानी की शुरुआत एक टैलेंटेड और ऑनेस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर डेविन चौधरी अजय दिवगियन से होती है। डेविन एक बहुत होशियार और मेहनती इंसान है जो अपनी एक नई और एडवांस कार डिजाइन करता है। ये कर सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। उसकी ये इन्वेंशन दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए बहुत मुफीद हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसको चोरी करना चाहते हैं। इससे आगे की स्टोरी आपको मेरी कॉलीग अहमद हसन कतरी बताएंगे। डेविन एक सिंगल फादर है जो अपने बेटे राज चौधरी से बहुत प्यार करता है। राज एक शरीफ और मासूम लड़का है जो अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। उसके सपने बड़े हैं, मगर उसकी दुनिया सिर्फ उसके बाप डेविन के गिर्द घूमती है। डेविन चाहता है कि राज एक बेहतरीन फ्यूचर बनाए और उसको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। डेविन अपनी नई कार का डिजाइन लेकर एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक राकेश कपूर के पास जाता है। वो चाहता है कि उसका डिजाइन इस्तेमाल किया जाए और इंडस्ट्री में एक नए दौर का आगाज हो, मगर कपूर और उसके करप्ट बिजनेस पार्टनर्स एंथनी डिकोस्टा, महेश सक्सेना, कैलाश चोपड़ा और खुराना डेविन के विजन को सिर्फ पैसा बनाने का जरिया समझते हैं। ये लोग डेविन की इन्वेंशन को चुरा कर अपना नाम देना चाहते हैं। जब डेविन इन लोगों के साथ डील नहीं करता तो ये लोग एक षड्यंत्र रच कर उसको मार डालने का फैसला करते हैं। एक रात जब डेविन अपनी कार के साथ एक ब्रिज से गुजर रहा होता है तो उसके पीछे यही करप्ट बिजनेसमैन लग जाते हैं। ये लोग डेविन को एक छोटी सी लड़ाई का बहाना बनाकर रोक लेते हैं, फिर उसको मारने लगते हैं। डेविन उनसे लड़ने की कोशिश करता है, मगर वो अकेला होता है और ये लोग 4-5। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार। एक रात जब डेविन अपनी नई कार लेकर जा रहा होता है तो उसके दुश्मन उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये लोग उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि वो अपना इन्वेंशन उनको दे दे, मगर डेविन इनकार कर देता है। आखिरकार वो बेचारा डेविन एक खूनी हमले का शिकार हो जाता है। वो लोग उसको एक नदी में इन्फेक्ट देते हैं और उसकी कार भी उसके साथ गिर जाती है। डेविन की मौत हो जाती है और उसका सपना अधूरा रह जाता है, मगर उसकी रूह इस दुनिया से जा नहीं पाती। उसका जुनून, उसका गुस्सा और उसका दुख उसकी रूह को शांत नहीं देता। डेविन की मौत के बाद उसका बेटा राज और उसकी माँ बहुत गम में डूब जाते हैं। राज बहुत उदास रहता है, मगर उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके बाप के साथ क्या हुआ। वो समझता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन असल में ये एक प्लान्ड मर्डर था। कुछ साल गुजर जाते हैं, राज बड़ा हो जाता है और अपने बाप की यादों के साथ जीता है। एक दिन उसको एक पुरानी और टूटी फूटी कार मिलती है। ये कार काफी बुरी हालत में होती है, मगर राज इसको रिपेयर करने का फैसला करता है। वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके इस गाड़ी को एक शानदार, मॉडर्न और पावरफुल स्पोर्ट्स कार बना देता है। लेकिन जो राज नहीं जानता था वो ये था कि ये सिर्फ एक आम कार नहीं थी, ये उसके बाप की रूह से जुड़ी हुई थी। एक रात जब राज सो रहा होता है तो ये कार खुद से चलना शुरू कर देती है। ये एक हॉन्टेड कार बन चुकी होती है जिसमें डेविन की रूह समझ चुकी होती है। ये कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक इंसाफ की मशीन बन चुकी होती है। अब इसका सिर्फ एक मकसद है, उन दुश्मनों से बदला लेना जिन्होंने डेविन को मारा था। एक एक करके डेविन की रोली टार्जन चार उन सब दुश्मनों को मारने लगती है। पहले एंथनी डिकोस्टा रात अपने घर जा रहा होता है जब टार्जन कार अचानक उसके सामने आ जाती है। ये कार उसका पीछा करती है और एंथनी को एक डरे डिलन वाले चाइस सीन में उलझा देती है। आखिरकार टार्जन
एंथनी की कार को एक पुल से टक्कर देती है और उसकी जघन्य मौत हो जाती है। फिर महेश सक्सेना एक क्लब में एंजॉय कर रहा होता है जब टार्जन कार क्लब के बाहर आकर उसका इंतजार करती है। जब महेश अपनी कार में बैठता है तो टार्जन उसको घसीट ले जाती है और एक हाई स्पीड चेस के बाद उसको एक ट्रक से टक्कर देती है। महेश भी मर जाता है। कैलाश चोपड़ा को टार्जन एक फैक्ट्री में पकड़ती है जहां उसको एक टेरिफाइंग तरीके से जिंदा जला दिया जाता है। फिर खुराना को टार्जन एक अबैंडन्ड हाईवे पर फंसाती है। उसको टार्जन एक क्लिफ से गिरा देती है जिससे उसकी हॉरिफाइंग मौत हो जाती है। जब ये कत्ल होने लगते हैं तो पुलिस और राज के दोस्तों को शक होने लगता है कि ये सब कौन कर रहा है। राज को भी समझ नहीं आता कि उसकी कार ऐसे कैसे चल रही है। आखिरकार उसको ये राज पता चलता है कि उसकी कार में उसके बाप डेविन की रूह है। एक दिन राकेश कपूर राज को फंसाने की कोशिश करता है मगर टार्जन कार आखिरकार कपूर को भी मार देती है। राज ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है कि उसके बाप ने बदला ले लिया, मगर अब उसको ये भी समझ आता है कि टार्जन कार को आगे चला कर रखा नहीं जा सकता क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है। इसलिए राज टार्जन कार को एक पानी के अंदर गिरा देता है ताकि उसकी रूह में रेस्ट कर सके। फिल्म एक इमोशनल नोट पर खत्म होती है जिसमें राज कहते हैं, पापा अब आप सुकून में हैं, मैं आपको कभी ना ही भूलूंगा।